Okay, guys. So today our topic is visual cards and visual schedules. Now, visual cards and PEX is apparently the same, but PEX is more technical and it has a set protocol by which you have to go. I have never used PEX per se, never really like I did not even know while I put the videos when I put my videos on YouTube. I did not even know that PEX and visual cards is something different because my therapist introduced it to me as specs. She always told me pecs banao, aisa karo, aise karna hai, then we'll do it like this. And however she demonstrated it to me during the sessions, I followed that ways and it worked like wonders for us. Starting में क्या हुआ था, when we went to this therapist, she is actually an ABA who started PEX with us. So जब उसने हमको बोला कि we'll start with PEX and Vian was not verbal then. तो हुआ ये, she said कि बहुत सारे PEX बनाने पड़ेंगे and you have to put it all across the like all around your house and you will have to train him to exchange the card for whatever he wants, and if he's not giving it to you after training, then you better not give, because that will give him a message कि बिना कार्ड दिए भी तो मिल जाता है, so what is the need to initiate or attempt to even communicate. So I just took that information and tried to execute. तो उस लेवल पे जब एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, Vian was not verbal then, and it ended up into big time meltdowns. Big time meltdowns. मतलब, it was so bad that me and my husband we ended up fighting कि क्या करें, जैसा therapist बोल रहे हैं वैसा करें या अपने मन से करें. Things are just not working, and then a lot of head banging and what not. So nothing was really working in the right sense. So we stopped going to her. जैसा हमको मोस्टली लगता है कि इसने गलत सलाह दी, things are not working. So if I'll tell her that we don't want to go by this, so probably she will not give the right response to my child, or she may not help us in an effective manner. तो हमने जाना बंद कर दिया. Then we went to the other therapist. कुछ sessions हुए, but again it was not that just not like how this former therapist was doing. Then when we visited Dr. Anjali Joshi, she assessed Vian thoroughly. सब कुछ किया. उन्होंने कहा थोड़ा बहुत sensory है, for which I'll guide you. But to work on building his communication, you need some help. You need a good professional help. And XYZ is the therapist's name, which I recommend. And she is the best when it comes to building communication. It was again the same therapist. And we were like, yeah, she is gonna talk about PEX, and PEX did not work for us earlier. So I might just not go. But then, I don't know, एक बस ऐसा instinct आया कि let me just try at least. एक reassessment ही हो जाएगा. Let's see what she says this time. Next, when we went, she guided us stepwise. पहले तो पूरा thorough assessment किया, and then she guided us कि ऐसे ऐसे we will go. These are the steps we need to follow. And here also, now, like earlier जब हम जाते थे उसके पास, तो her room was not full of PEX. But this time when we went to her after around 5-6 months, what we saw was her room was full of PEX. Like all the walls had different kinds and category of these cards. I should say visual cards. So all over the place. The way she conducted the therapy, from there I got an idea that this is how I'm supposed to generalize and expand the same thing at home. Now, what she used to do was, she would have, like on one wall she has mixed cards. She never really kept it categorically कि एक पे हम physical activities वाले लगाएं, एक कार्ड पे हम
toys के लगाएं, like you want crayons or you want bubbles or you want to play with the light and sound toys. She never did like that. She just jumbled it up all over the place. And if I can correctly recall, it was just one single session where she modeled and kind of prompted Vian to pick his cards. And then on the wall, she wrote 1, 2, 3, 4, 5. And whichever card she made Vian choose as the first card, she put it against 1, then 2, then 3, then 4. ऐसे करके 4-5 cards she decided, and she kind of prompted Vian कि अब ये card उठाओ, अब ये card उठाओ, अब ये card उठाओ. But that was only once I saw her doing that. इसके बाद she stopped prompting and she started expecting Vian to guess that what he's supposed to do. So how exactly she did was, like, say suppose first card है, ऊपर उसने लिख दिया work time. She never really wanted this word to get into the child's head, therapy time. So she wrote work time. Now this one full hour is work time. What she would do, pehla card jaise suppose she put book time. Then she made Vian choose from, say, 4 cards on the wall. Isme se you can select any one. The one is say pen and paper, the other card is crayons, the third card is something else, and likewise. So he chose crayons. So first card was book, then crayons, then picture, big picture, then something, then small picture. So like that, 6 to 7 cards in a column, numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, or last me home. Or around that schedule which she prepared, like for 1 hour, around that particular strip, she put the card, 2-3 cards, कि बच्चा किस चीज को लेके anxious हो सकता है. At that time he was not even toilet trained, so she put 1 card of the washroom picture, 1 card of food, water, and no class, like this should end, sleep. ये सारी चीजें होती हैं, लाइक स्टार्टिंग में जब हम सेशंस के लिए लेके जाते हैं बच्चों को, तो दीज आर द पॉसिबल रीजंस बिकॉज ऑफ विच दे आर ईदर नॉट in that zone of the class thing that moment, and they just want to make an escape. So whatever are the possible things she could make out, she put those cards around. And whenever he was not responding, like 1-2 सेशंस उसने थोड़ा सा कहीं प्रॉम्प्ट किया, कहीं जेस्चरल प्रॉम्प्ट, कहीं वर्बल प्रॉम्प्ट, बट नॉट रियली लाइक द होल थिंग कि पूरा स्केड्यूल हम बनवाएंगे आपसे. थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट कर करके एक बार ही शायद we had this susu potty accident in the therapy room, but otherwise he really got that thing कि अगर मुझे जाना है तो I need to pick this card and give it to mama. So he got toilet trained with the help of visual cards, because that thing I generalized at home. Then food, water, उस schedule के चलते तहत उस duration में अगर if there is something which you just don't want to do and you feel like, you know, munching on something, so you pick that card and give us, only then you will get it. Otherwise, what is happening, you have to go by that. And the last card towards the end, home का picture, gives the child a little relaxation कि अच्छा ये होने के बाद घर जाने मिलेगा. So it's not that like it's a never ending stuff और बस ये तो चलता ही जाएगा, don't know what more is coming up. So that preparedness कि this is ending in a while. So if I do this, it's not about how well I do it, but I just need to do it. I just need to be a part of it. I need to be active and participative. That's what is expected of me. So that was the integral part of her sessions. Now each card, when it, like जैसे अभी card number 2 का time आ गया, each card like when the thing is done, she would either cross it or check it or remove the card and put it in the box. Now check and cross is again very important. Whichever symbol you are using, we have to be very consistent with that. अगर हम finish के लिए check use करते आए हैं शुरू से, so we maintain that. We always use a check. If we have been using cross, because otherwise if you see, check and cross are two totally opposite things. ठीक है, they contradictory वो है.
So that will confuse the child अगर हम कभी check और कभी cross use करेंगे. So what she did was, with the marker, these were laminated cards. So with the marker, she would just cross it and put it down. And she used to stick them on the wall with a blue tack. So we did exactly the same thing. If you've seen my video on YouTube, how to make the pegs, आपने देखा होगा उसमें कितने तरह के कैटेगरीज हैं, कितने सारे कार्ड्स हैं. एंड वी ऑल्सो डिड द सेम थिंग. तो हमने भी पूरा हॉल, कुछ कार्ड्स बेडरूम में, कुछ वॉशरूम के डोर पे, कुछ फ्रिज पे, कुछ किचन के साइड वॉल पे, we just stuck the cards all over and trained Vian on exchanging the cards for communication. धीरे धीरे वहां से जब कम्युनिकेशन आने लगा, when he got like when he understood the concept that अगर मुझे कुछ चाहिए and if I do not know how to ask for it, this is the best way out. I just need to pull this card and give it to mama. Initially, he played with the cards like anything. He would pull out all the cards, put them all in the box, mix them up. Then even if he doesn't want something, just out of fun and play, he would bring the cards and give it to me. But that was something to be corrected in a very gentle way. तो हमने इसको डांटा नहीं कभी भी कि ये मत करो, ये मत करो, because the more you say ये मत करो, they tend to do it more. So every time he would bring the card, whatever we are doing, whatever I am doing or my husband was doing, we would just take him, hold his hands and make him paste the card. So even if he pulls it out 10 times, it was a big time exercise for us. But even if he pulled it out 10 times, we made him stick it back. तो उसको समझ में आ गया धीरे धीरे. It took us time to reach there, but he understood that this is something not to play with, but something to use as a tool for communication. So from there, it started like one hour ka session, then a few hours at home, like say suppose the first part of the day, the morning routine, we made cards. धीरे धीरे उसको कार्ड से चीजें समझ में आने लगी, तो उसका expansion we took up on the Let Me Talk app, which again she trained me on that. On the app now, how exactly we did? So suppose he chooses book time. Now book time could be any book. It could be a story book, it could be a writing book, reading book, anything. It could be an alphabet book, body parts. उस टाइम छोटा था तो there was a different category of books altogether. So इसके पास जितने भी books हैं, we clicked the pictures. You also get pictures on the internet, so some you can download, and we put them all up on the Let Me Talk app. Now, if he says book time, we open Let Me Talk app and we show it to him कि इसमें से choose करो which book you want. Now, out of that excitement, yeah, they are so fond of using the gadgets and exploring कि ये क्या कैसे होता है. Let Me Talk has an option to play the sound or put it off. So I intentionally put it off because वो sound उनको और ज़्यादा attract करता है, and then that accent and all. So he was trying to pick on that, तो मैंने sound off करके रखा हुआ था. So suppose if he has selected the card book time, so I would make him click on any book. तो एक बार में समझ में नहीं आता, but when you make him click on a particular book which you might know probably that this is one of the favorite books, so you make him click and immediately you get the book, and then you start reading or whatever. Like if it's a reading book, reading, it's a writing book, आप write कर रहे हो, drawing, painting, art and craft, whatever book. So वो हमने वैसे किया. Then suppose if he's asking for cars, then in cars, if he's asking for toys, then toys में which toys? So say suppose he says cars बोलते, चलो vehicles ही कर लेते हैं. He asks you for vehicles, so you should have a separate box for vehicles, which again we do a lot of language training, communication along with this. Like it's not just cards on which we have to work, but suppose if he has selected vehicles and you have a separate box of vehicles with you, so let him say or point to the correct vehicles. Now this is like stage 2. शुरू में आप उठा के दे रहे थे, but now after he's got that concept, you make him point to the box. Now then when he points to the box, ठीक है, आपने पकड़ लिया, अब क्या? To let him indicate either with the gestures that I want, give. When then he gives you, then what? Now the child is not able to open it. Suppose if he's not able to open it, then he should say,
or you prompt open. If he's not verbal yet, then you prompt for the words. So this is how we work on building vocabulary, building two word phrases, then a small sentence, then eventually communication. Now most of us have this question in our mind कि अगर हम ये cards use करेंगे, so they will all the more not speak. अभी भी नहीं बोलते हैं, और अगर cards का उनको मिल गया एक टूल मिल गया that this can speak on our behalf, तो हमें ज़रूरत क्या है? But it is not like that. Trust me, I have seen many other kids, and she also took group sessions, and I have seen children there who were non-verbal and they became verbal. Vian got verbal, though there were other things also going on, like I've shared in my journey, but this really helped us bring down a lot of behaviors, his anxiety, because he knew how to communicate. So once he's able to communicate, I think with my experience, I'm telling you, once the child is able to communicate, speech follows if he's not verbal yet, because उसको समझ में आने लगता है सुन सुन के और बोलने के बाद एक्सप्रेस करने के बाद that I can add, अगर babbling भी आ गया ना, तो I can actually add sound to it. I can add some word to it, like mama is talking. He develops more interest to uh, speak the word also along with that. And the reason why we write the words also is this only. एक तो sight reading develop होता है, and then every time when the child is picking the card, you actually speak out the word. You indicate him कि ये बोलो. So that happens stage wise. All this I have shared on the videos on YouTube as well, but it's in various parts. There's one video on how to make the cards, then the other video on how to use Let Me Talk app, then how to use it in scheduling, now how to bring in choices. So choices, or you want more, you want finish, इस तरह से हम बीच बीच में चीजें introduce करते हैं. So what we did was to introduce this choices. कुछ pieces में schedule आप बनाएंगे. So like say suppose I place one card, then Vian has to place the second card. You choose what activity you want. So maybe in the beginning you can give 3 to 4 cards, choose one from this. Then for the next card, when he has to choose, so alternately you are placing next card which he has to choose, he can actually choose from any of the cards which are around. Then if there is something which he asks for and it is not feasible for you, like say considering this corona time, we can't go out, and you have stuck the card of playground, हम नहीं जा सकते नीचे. So you explain it there. This also explicitly I asked her कि should I just remove those cards which are just not workable for me in those days, or maybe say for a week's time, 2 days time, or that particular day, should I just remove those cards? She said, why? Don't you want to explain things to your child? So you will not remove the cards. Instead, you will explain that we are not going to the playground. Now from there, you will again expand that this card is not happening, even though you've chosen, but we put it on the schedule, we put a cross, and I give you a choice. You choose something else because of so and so reason. You show the videos, you prepare a PPT, you do whatever you want to explain to, like at whatever level your child is, you explain it to him, and then you make him understand that this is not working. So we take this card, put it in the box, and we choose the another alternative. जो भी आपको करना है हम वो करेंगे. Okay, so he gets it. So this is how she guided me through how to build a schedule and how to bring in choices. Now suppose if the child is asking you for some jumping time, the gym ball time, trampoline time, or anything, now we can't give it to the child for, say suppose like any unlimited time के लिए हम नहीं दे सकते, 30 minutes नहीं दे सकते, 20 minutes नहीं दे सकते. So we can introduce the timers here. We can also, like this works like a multi-purpose thing. It's not just the schedule and the choices, but हम साथ ही साथ time का concept build कर रहे हैं. कोई भी चीज की एक limit होती है, उसकी importance explain कर सकते हैं. So we can go on adding the language. So like Vian is asking me for some trampoline time. So I will ask him
For how long do you want? Now he doesn't understand time. Assume that he doesn't understand time. But still, I prompt him with my phone. I open the alarm, I open the timer, and I ask him, choose a number. Now, say he says 7 minutes. Seven, I find is too long. So I'll actually express it. Seven is too long for trampoline. No, lesser than that. Number lesser than seven. So he says six. Then you say, no, six is also not working. Even lesser, even lesser. Okay, I give you a choice, 2 minutes or 4 minutes. Then he chooses. So he is doing it out of fun. He's not understanding कि इतनी देर के लिए मुझे मिलेगा. But when you literally put the alarm and the alarm buzzes, first alarm you have to give him time like 15 seconds, 20 seconds. Now this is alarm one, second alarm finished. Use a lot of gestures along with whatever we are doing. So that prepares him, and gradually he understands the system of alarm. This again helps us in ending any task or preparing the child to finish a particular task. कि हम कोई भी चीज आधे में नहीं छोड़ सकते और कोई भी चीज हम अनलिमिटेड टाइम तक भी नहीं कर सकते. So we set an alarm and we do this. We did talk about alarms and timers in the clock and calendars session also. So this we did. Then communication book. Communication book का रोल तब आया, मतलब हमने तब किया when a lot of traveling was involved. We had back-to-back family functions. Like हर 4 महीने में घर में एक शादी हो रही थी, and I was just not able to understand that how many packs to carry, how many cards to carry, कैसे करें carry, how exactly is this going to work and continue, because this was really working for us and I did not want to give up on that. And everything is not possible on the Let Me Talk app. तो कुछ cards तो चाहिए. On Let Me Talk you can definitely expand. Like just suppose a broad schedule hai, you can stick it up on the wall, but you can't prepare a schedule on Let Me Talk app. So I asked my therapist. So she said, you start preparing a communication book. I never really googled कि सच में कोई communication book as it is बनी बनाई या कोई set format पे भी कुछ होता है. However, she guided me. I went on working on that. So she said, एक वो ले लो आप ring file and you put some laminated sheets in that. And on the laminated sheets, again, you can stick with the blue tack and take a pouch of cards with you wherever you go. So there he can, actually take out the card and paste it and express usko kya chahiye. Also have a few sheets on which he can write, or you can write with the marker. So sometimes if you don't have any card, this I did with the picture cards also. There are certain things जिसके आप pictures नहीं immediately नहीं निकाल के ready कर सकते. So I had blank laminated cards on which I would just write or draw छोटा सा pictorial and just paste it in the schedule. So that was one thing which came really handy. Coming back to the communication book, so this we carried everywhere. Now one episode I recall, when we used to go down in the playground, he was very, very attracted towards another boy's cycle. He did not want to ride his own cycle, though the two were same model, just a little difference in the color. His was fluorescent green, which attracted him, and Vian's dark bottle green. But he wanted to ride that fluorescent green only. Ab kya kare? So he would just not be ready to listen to anything. मुझे तो वो चाहिए चाहिए चाहिए. And kids, as you all know, the other boy would also not want to give his cycle. And the two are not ready to exchange also, even for 2 minutes. So what to do? So I asked about this to my therapist. She said, कुछ मत करो, take a small diary. छोटे छोटे notepads आते हैं. She said, now that he's understood how the communication book works, you take a small diary and just write and show it to him. Because when you show something to the kids in writing, उनको चीज समझ में आसानी से आती है and they don't get anxious. So I explained it to him, not ours. It is not ours and we don't have any rights on that. He can't ask for it. And then I actually did this. So I started crying one fine day when I did not see that boy anywhere. I started crying, like I pretended that I'm crying, and
expressed to Vian that I want this car. I want to ride this car only. Where are the keys? Help me get the keys. The Sara Natak drama, we did all that. And he was like, hmm. He could not, speak a lot then. So he was just doing the action, Then in a with those very upset expressions and all, we came back home. And in the evening, when my husband was back, I told him कि वो कार मुझे चलाना था, मिली नहीं. See, our kids listen to everything, they absorb everything, they understand everything. So intentionally in front of Vian, I did this whole drama. I wanted to drive that car and I didn't get it, and I will cry and da 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 da. All the sorts of things that Vian used to do. I did all that, and then my husband explained it to me. He no, it is not our car. You cannot drive that. You have to drive your car only. You don't have rights on other people's thing. So ऐसे कर करके ना धीरे धीरे चीजें with the written communication, the cards, and modeling the right behavior, he understood that. Then and apart from this, we used a lot of photographs or images from the Google. Now it's not a part of the schedule exactly, but like there was a wedding coming up in the family, and we had to travel. So I sequenced pictures in the Let Me Talk app. एक folder बनाया हमने. पहले calendar में उसको दिखाया कि on this date we are traveling. Now what is going to happen in this travel? So we made a folder in the Let Me Talk app that we will be going by train, then we will be going by the flight, then we are reaching this hotel. तो होटल के पिक्चर्स सब कुछ मिल जाता है गूगल पे. देन इट्स अ वेडिंग दैट वी हैव टू अटेंड. वेडिंग में ऐसे ऐसे फंक्शंस होंगे, एक आध आप हल्दी मेहंदी इस तरह के हमने सब वो निकाल लिए. एंड आई शोड इट टू हिम एवरी डे. लाइक इट हैड बिकम लाइक जैसे हम रोज कभी पाठ करते हैं, दिया जलाते हैं, इस तरह से कुछ रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं. आई मेड इट अ रिचुअल कि जब तक हम नहीं जाएंगे रोज मुझे इसको दिखाना है कि ऑन दिस डेट वी आर गोइंग एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. This is all what you will be seeing. So that prepared him so well. He enjoyed that wedding more than anybody. He was the one who was on the floor all the time, dancing, talking to everyone, going to everyone. So that was like a wonderful experience. So usse I understood that visual aids always is something which always helps them understand anything very easily, and also to communicate better. So it's both ways. They understand you better, they are able to express themselves better. So that is all I can think and recall as of now. I would say अब आप अपने questions पूछना start करिए. उसके बाद I was searching for the cards, मुझे नहीं मिले, but I have a few schedules which on and off we had been preparing. So I'll show you that. But let me first take up the questions if we have any. Yeah. So whoever wants to ask a question, I am not sure, but can you see an option to raise hand? I'm also not sure. One of you will have to try that. Otherwise, one by one, you can just unmute yourself and ask if you have any specific questions in terms of, in this context, how to make the cards and how to use the schedule. If you don't have any questions here, then I'll Hello, first. Yeah, please tell me. I'm Srishti. Yes, Actually, ma'am, मेरा जो kid है वो 4.7 years का हो चुका है, and he is verbal. Like verbal means age appropriate तो बोलता नहीं है, लेकिन जो भी बोलता है अभी वो need based ही है. जैसे कि उसको जो भी चाहिए he can explain very nicely, but about conversation अभी हम दोनों ही रहते हैं.
लेकिन घर में पूरा जैसे कि मतलब जितना टाइम मैं बात करती हूँ उतना टाइम ही वो कुछ कुछ बोलता है, जैसे रिपीट किया या फिर आंसर किया उतना ही, लेकिन वो अपने तरफ से मतलब कुछ बोलता नहीं है। तो इस सिचुएशन में मुझे कुछ उसको विजुअल कार्ड्स वगैरह मैंने अब तक कुछ ट्राई नहीं किया, लेकिन आप जैसे बोले कि हम अगर उनको प्रिपेयर करेंगे तो वो सही रहेंगे। उस चीज का मैं बिल्कुल। एग्जाम्पल एक लेती हूँ, जैसे कि बिग बाजार या मॉल्स जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है हम्म। वहां पे इतने सारे चीज देख के। तो हमने मतलब जब वो 3 साल का था उसके बाद हम लिए नहीं थे। एक बार मैं सोची कि उसको कैसे मतलब इतना दिन बिना लेके तो नहीं होगा, कभी तो कभी जाएगा। तो इसीलिए मैंने उसको पिक्चर्स दिखाए, लिस्ट बनाया कि वहां पे ये सब चीजें मिलते हैं और तुमको क्या क्या चाहिए ये लिस्ट बनाओ। उसका हम्म। लिस्ट बनाया और उसको लेके गए वहां पे, मतलब उसका पिक्चर्स भी दिखा के लेके गए थे। तो ही वाज लाइक, जैसे कि पहले वो जैसे टेंट्रम शो करता था वैसे नहीं था, उसने एंजॉय किया, अपना सारा सामान लिया और हम्म। लेके आया। उस दिन से जब भी हम लेके जाते हैं ही वाज विल बिहेव इन दैट प्लेस। तो वो ही या कार्ड जैसे मैंने अभी, लेकिन जो स्पीच सिखाने के लिए मैंने उसको कुछ विजुअल कार्ड्स यूज नहीं किया अब तक। तो आप कैसे कुछ मतलब सजेस्ट कर सकते हैं कि आगे उसको कुछ कार्ड्स वगैरह या फिर कैसे मैं करूँ? बिल्कुल। तो अभी जैसे अगर वो कम्युनिकेटिव है, एटलीस्ट ही कैन एक्सप्रेस हिज नीड्स, जितना उसको जो चीज चाहिए वो मांग सकता है ना। तो आप बहुत डिटेल्ड कार्ड्स नहीं भी बनाओ अगर, तो ब्रॉड जो जो चीजें आप ब्रॉडली करते हो, जैसे स्टडी टाइम हो गया, वॉशरूम रूटीन हो गया ना, तो वॉशरूम का, आपके वॉशरूम का डोर थोड़ा सा ओपन करके एक पिक्चर आप ले सकते हो। एनीथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ योर वॉशरूम रूटीन। तो सुबह हमारा वो हो गया वॉशरूम रूटीन। देन मील टाइम का एक आप कार्ड, मील टाइम का एक कार्ड ले सकते हो। एक्टिविटी टाइम एक ब्रॉड कार्ड आप बना लीजिए, एक्टिविटी टाइम। अब एक्टिविटी कैन बी एनीथिंग, वो फिर आप राइटिंग में कर सकते हो। तो हाँ, दिस इज वन थिंग विच आई मिस्ड ऑन टेलिंग। तो इवेंचुअली क्या हुआ, हमने ये कार्ड्स यूज करना बंद कर दिया, बट अब्रप्टली बंद नहीं किया। वी ग्रेजुअली मेड दिस शिफ्ट फ्रॉम कार्ड्स टू द व्हाइट बोर्ड, और व्हाइट बोर्ड से फिर वी केम टू पेन एंड पेपर, एंड देन ऑन एंड ऑफ, कि कुछ चीज जब नहीं समझ में आ रही है तो छोटा सा एक स्टिकी नोट पे बस छोटा सा थोड़ी 2-4 चीजों का स्केड्यूल बना के स्टिक कर दिया। बिकॉज क्या होता है, कोई भी चीज हम बच्चे को जब बार बार बोलते हैं ना, जैसे सपोज आई एम टेलिंग वियान अब PS4 बंद करो, हम कितनी बार बोले तुमको, सुबह से 10 बार बोल चुके हैं, तुम सुन नहीं रहे हो हमारी बात। ही वुड जस्ट नॉट लिसन, ही वुड वांट टू डू इट मोर एंड मोर एंड मोर। एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन अभी ये थोड़ा सा बिहेवियर वापस आया, एंड समटाइम्स आई ऑल्सो लूज एंड आई स्टार्ट गेट इनटू माय बिहेवियर्स, कि हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू, इवन इफ आई विल नॉट लूज माय काम, बट आई डू यूज दिस लैंग्वेज। कितनी बार और बोलूं, चलो बंद करो, but it doesn't work. And the day I just write two things, PS4 time, इसके पहले one like say suppose 30 minutes play time with mama, अब mama कुछ भी play कराए, but it is your play time with mama. After this you get PS4 for 1 hour. फिर आप देखो कैसे वो करता है, and after PS4 again you give him some fun engagement with you. He is so happy to give up on that PS4, कि वो चीज अपने आप सेटल हो जाती है। सो आई वुड सजेस्ट आप ब्रॉड स्केड्यूल आपका जो भी है दिन भर का, वो उसके आप कार्ड्स बनाओ, और जहाँ पे डिटेलिंग करनी है, जैसे सपोज अभी हम बाहर नहीं जा रहे हैं, बट सपोज इट इज आउटडोर टाइम। अब आउटडोर कहाँ जाना है, हमें सुपरमार्केट जाना है, हमें हमें गाड़ी में घूमने जाना है, हमें नीचे वॉक पे जाना है, या हमें मॉल जाना है। सो वॉट एवर आर दोज ऑप्शंस, यू कैन ईदर राइट छोटा छोटा पिक्टोरियल ड्राइंग आप खुद ही कर लो व्हाइट बोर्ड पे, या फिर लेट मी टॉक ऐप इज फ्री आई थिंक ऑन ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एंड्रॉइड में भी फ्री है और शायद इसमें भी फ्री है, तो वो आप कर सकते हो। और उसके अंदर आप कितने भी पिक्चर्स ऐड करो, यू कैन ऐड योर ओन पिक्चर्स, यू कैन पिक पिक्चर्स फ्रॉम गूगल एंड ऐड इट, और उसकी कुछ इनबिल्ट पिक्चर्स भी हैं। आई विल share the links once again on the group, वैसे मैंने शेयर किए थे अभी, तो you can go through the videos. Let me talk exactly कैसे काम करता है। It comes very handy, trust me. मतलब I'll tell you, हम लोगों ने इतने फोल्डर्स, सब फोल्डर्स एंड उसके भी सब फोल्डर्स इतने बनाए थे। जैसे स्लाइम चाहिए सपोज, या कुछ भी सेंसरी चाहिए, तो एक सेंसरी आइटम्स का फोल्डर था, उसमें से क्या चाहिए, स्लाइम चाहिए। अब स्लाइम, कौन सा स्लाइम चाहिए, हम सारे तो नहीं दे सकते एक साथ, तो कोई भी 2 कलर्स चूज करो, तो एक कलर्स का फोल्डर है, अब उसमें से तुम कलर चूज करो, हमें बताओ। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड हुए उसके साथ साथ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिलैक्सिंग और रिलीविंग द चाइल्ड, बट इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी
टू वर्क ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, नहीं तो हमें अलग से इतना क्लिक नहीं करता. वी ऑलवेज फील सो मच प्रेशर कि ये भी सिखाना है, ये भी सिखाना है, ये भी सिखाना है. बट आपके सामने जब चीज होती है इन अ विजुअल फॉर्मेट, तो हमें भी एक हमें खुद को एक विजुअल एड मिलता है कि अच्छा, दिस इज मेकिंग इट सो इजी फॉर मी, आई कैन मेक हिम अंडरस्टैंड इवन ईजियर नाउ. जैसे अभी स्कूल्स में भी बच्चों का, like Rian is not attending his classes in the real time, we later go through the recordings. तो उसमें भी most of the times what I do is वो पूरे 4 घंटे की रिकॉर्डिंग, 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग मैं सुनती हूँ, and then I try and give him that all the you know जो भी उसका crux है, I try to give him in the minimum screen time possible. So say suppose half an hour or so में हम पूरा cover कर लेते हैं. So I know which sorry, there's a power cut here, but is my voice still clear? Yeah, ma'am, your voice Yeah. is clear. Yeah, okay. So where was I stuck? So I was telling you, so I give him screen time minimum and go through the whole recording, because now I know that how exactly I have to teach him this thing. So there's no point making the child sit in front of the laptop and be distracted at 10 different places, and at the end of 2.5 hours, if you ask him what is a kacha house and what is a pakka house, he's not able to answer you. So I know, like, with the help of visual aids, it becomes easy for us also, that there are so many videos available on the internet, there are pictures available. हम खुद ड्रॉ कर सकते हैं, हम क्राफ्ट कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं ना. वी हैव सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल. So it becomes more fun time for us with the help of anything which is visual and makes your task easier. So it gets easy for them also. हमें भी अगर आज कोई चीज आप देखो, कोई say suppose this particular webinar, if we were doing it on a telephonic or a voice call, you were not able to see me or whatever pictures I'm talking about. If I was not showing you or referring to any videos which you've already seen, would it be easily understood by you? I don't really think so, because we face a lot of difficulty अगर सिर्फ auditory input मिलता रहता है, और एक टाइम पे ऐसा लगता है आके कि अब बस करो, I just can't take anymore, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, it's too complex for me and I just can't take it. Our kids can't express that most of the times. उनके लिए बहुत heavy हो जाता है वो auditory input, and we repeatedly go on saying that same thing again and again, again and again, और उनको कुछ समझ में नहीं आता. And how they show it in form of different mannerisms or behaviors, या फिर self stimulatory behaviors. And we think कि अब हम इसको कैसे redirect करें. So this is, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, this is like a magic mantra. It has worked for me like anything. Vian के इतने behaviors थे, but keeping patience and keeping faith and trust in this particular thing also helped a lot. Initially जब हमने नहीं use किया, और बाद में जब हमने use किया, we could see the difference in the two the two things. So yeah, so मैम जो folder and sub folder आप बोले, that is in Let Me Talk app or in computer? It is in the Let Me Talk app वाला video. हाँ, how to use Let Me Talk app. Actually I downloaded that. आप बोले उसके बाद मैंने डाउनलोड किया और खोल के देखी, कुछ फोल्डर्स मुझे मिले. So I thought like he can like I want this or I need this. वो पोजीशन में वो है अभी, लाइक वो बोल देता है कि मुझे ये चाहिए, थोड़ा डिस्क्राइब भी करके बोल देता है. तो उसी को मैं दोबारा देखूंगी वो ऐप को कैसे यूज कर सकती हूँ. हाँ जी, आप उसको दोबारा देखिए और कोशिश करिए उसको यूज करिए टू बिल्ड मोर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स. जैसे सेंटेंस फ्रेमिंग अगर आ गया है तो आप उसमें सेंटेंस पे एम्फसाइज मत करो. ही कैन एनीवेज मेक अ सेंटेंस नाउ. सो यू एम्फसाइज मोर ऑन गिविंग लाइक डिटेल्ड चॉइसेस. जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, व्हीकल्स चाहिए, कौन सा व्हीकल्स चाहिए, कार चाहिए, कार में कौन से कलर की कार चाहिए, कौन से टाइप की कार चाहिए. तो लाइक इफ द चाइल्ड हैज दैट ह्यूज कलेक्शन ऑफ कार्स, अगर कोई और चीज है तो उसमें कार इज जस्ट एन एग्जांपल हियर ना, तो वो आप अपने हिसाब से जस्ट ट्वीक इट. जैसे थेरेपिस्ट ने भी कितने सेशंस लिए, 6, 5, 7, 8 जितने भी, बट इवेंचुअली वी जनरलाइज्ड इट एट होम एंड यू हैव टू सिंक इन विद दैट थिंग. अगर हम ये सोचेंगे कि ये हमारे लिए काम है
और अभी नहीं करते बाद में कर लेंगे, तो वो कंसिस्टेंसी अगर ब्रेक हो जाती है तो फिर बच्चे नहीं करते, then they just don't do it. Yes, So yes. that is one very important thing. You have to be really consistent on. मैम आपका म्यूट हो गया। ओके Oh sorry. हाँ. मैम आप एक बीच में बोले थे PS4, may I ask what is that? Even I don't know much about that, but it is some game का Okay. device. Okay, And he okay. plays that with his father a lot these days. And it's Okay, not a good thing, so I will never suggest कि आप कभी भी वो लेना. So okay, fine. there was a time before this lockdown when whenever Vian is getting bored or something, he would ask me to play the bhajans and he would try to dance on those bhajans. जैसे आरती कुंज बिहारी की was his all time favorite. But अभी अगर वो बोर होता है तो वो मेरे को डांट के बोलता है, this is my PS4 time. I will not say once again, I want the remote. तो you know मत लाओ ऐसी कोई चीजें घर पे अगर नहीं है तो. They are very nicely marked their timing, like whatever they like. Yeah. Ma'am, I have a small experience about that. Like आदि जब 3.5 का था, उस टाइम में हम उसको पहली मूवी दिखाने गए थे. So I was like before 1 week मैं बहुत कुछ सोची थी कि वो कैसे बिहेव करेगा, मुझे देखने देगा या नहीं देगा, बहुत कुछ सोची थी मैं. तो वहाँ जाके हम द लायन किंग गए थे. 3D वाला मूवी था, तो वो 3D ग्लासेस पहनेगा कि नहीं, तो मैंने उसको वो कार्ड्स वगैरह मतलब मूवी हॉल दिखाई थी, लायन किंग का पिक्चर दिखाई थी, तो ऐसे करके मैं उसको प्रिपेयर करके लेके गई थी. और उसने इतना अच्छा वहाँ पे ये किया, वो जो मतलब पैर फैला के बैठ के पूरा अच्छे से देखा, पॉपकॉर्न हाँ. वगैरह खा के, बीच में बिल्कुल भी ये नहीं किया. और फिर ग्लास को ऊपर नीचे करके वो डिफरेंस देखा कि ऐसे ऐसे डिफरेंस आता है. तो एंड बाद में हम क्या खाएंगे, उसको सब मैंने प्रिपेयर करके लेके गई थी. वो मेरा मतलब बेस्ट डे था. मुझे मूवीज बहुत पसंद है, See, so लेकिन you've उसने बहुत अच्छे experienced से it, है ना? हाँ. किया. Yes, You've ma'am. experienced it, and I'm sure most of the parents here are using schedules in some form or the other, visual cards, किसी भी फॉर्म में. पर हम जब भी एक Yes, ma'am. विजुअल वो दे देते हैं ना, हेल्प या एड बच्चे को, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम. उनके लिए क्या, हमारे लिए कितना इजी हो जाता है ना. ये वर्ड पता नहीं था तब कि इसको पैक्स या विजुअल कार्ड्स या कम्युनिकेशन बुक बोलते हैं, लेकिन जब वो बिग बाजार वाला एक्ट उसके ऊपर अच्छा गया, तो मुझे लगा कि हाँ. उसको प्रिपेयर करके लेके जाना बहुत अच्छा रहता है. बिल्कुल तो बिल्कुल. हाँ जी. ओके. एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? हाय डॉक्टर खुशबू. हाय जयश्री. या हाय. मैं ना पूछना था मुझे कि जैसे मैंने नॉर्मल मानो सपोज विजुअल स्केड्यूल बनाया, टॉयलेट, ब्रशिंग, ब्रेकफास्ट, बेडिंग, हाँ ठीक जी. है, क्राफ्टिंग. अब क्राफ्टिंग आया, उसमें मुझे ऑप्शंस देने हैं, ठीक है, तो मैं क्राफ्टिंग के लिए लेट मी टॉक ऐप यूज करूं फिर? हाँ जी बिल्कुल. या तो आप लेट मी टॉक ऐप यूज कर लो, या फिर आप अगर सामने रख सकते हो मटेरियल एंड यू नो दैट ही विल जस्ट नॉट ग्रैब ऑन टू इट, तो मे बी इफ यू हैव सेपरेट बॉक्सेस या मतलब इफ इट इज समथिंग व्हिच इज फीजिबल लाइव कॉन्क्रीट, तो आप वैसा करो. एंड इफ नॉट देन लेट मी टॉक, तो ऑलवेज इट्स वेरी हैंडी. मतलब लाइक मैं इनिशियली कंक्रीट यूज करती हूँ, सब्सिक्वेंटली मैं फिर मूव करती हूँ लेट मी टॉक में. हाँ 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 बिल्कुल. दैट विल बी लाइक ग्रेट. हाँ जी, परफेक्ट हो जाएगा. और जैसे वर्कशीट्स हुए, जैसे हम मानो स्टडी करवा रहे हैं, टेबल वर्क करवा रहे हैं, उसमें हमारा 3-4 वर्कशीट्स है, मतलब तो क्या मैं उसके भी डिटेल्स डालूं फिर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मतलब एटलीस्ट आप सब्जेक्ट्स तो मेंशन कर ही सकते हो, और वर्कशीट अगर आप प्रिंट आउट निकाल रहे हो तो यू एनीवेज हैव अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ इट, सो यू कैन ऑलवेज. नहीं लाइक मैं ये कर सकती हूँ कि मैं वो A4 शीट में अलग से, जैसे मैं अगर मानो टेबल वर्क कर रही हूँ, तो उसमें मानो मैं नंबर राइटिंग कर रही हूँ, मैचिंग कर रही हूँ, और कुछ भी काउंटिंग विद वैल्यू, तो वो सब मैं उससे सिलेक्ट करवाऊँ, मतलब उसे चूज करने दूँ ऑप्शन. हाँ हाँ जी. है ना? अगर आप जितना चॉइस दोगे ना, उतना बच्चे का इंटरेस्ट भी आएगा और उतना सिटिंग टाइम भी ज्यादा मिलेगा. सो चॉइस हेल्प्स अस अ लॉट. तो वो मैं है ना? A4 शीट में कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो आप. हमने क्या किया था, एक छोटा सा A4 साइज का भी एक व्हाइट बोर्ड आता है ना, तो वो हमने रख लिया था अपने पास. ओके सेकंड ना. ओके. सुश्री, I'm putting you on mute dear. Yes, yes. Yeah.
तो हमने क्या किया था जयश्री, एक छोटा वाला व्हाइट बोर्ड ले लिया था, बिकॉज A4 शीट्स में भी क्या होता है, हम कितनी शीट्स निकालेंगे बार बार, एंड बोर्ड पे यू हैव एन ऑप्शन टू इरेज इट देन एंड देयर। तो वो छोटे वाले मार्कर्स आते हैं ना, जो ये ऐसे वाले जिसमें डस्टर भी होता है, हाँ, तो हम इससे लिख लेते थे कि ये या ये या ये। सो समटाइम्स इवन इफ यू हैव 4, तो यू कैन जस्ट ड्रॉ ग्रिड ऑफ 4 बॉक्सेस और 4 चीजें आप लिख दो एंड मेक हिम चूज। तो बाकी यू कैन आल्सो डू, ये चूज किया, ये हमने टिक कर दिया, जो हमें नहीं चाहिए वो हमने क्रॉस कर दिया। एंड मोर एंड फिनिश का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस है, व्हिच आई वुड सजेस्ट। जैसे कोई चीज ऐसी होती है ना, हमारे बच्चे दे आर जस्ट नॉट एबल टू यू नो गेट डन विद दैट। जैसे वियान का मैंने PS4 बताया, नहीं हम फिनिश करेंगे ही नहीं, तो यू कैन ऑलवेज एक लिमिटेड टाइम के लिए दो। सपोज आपने अपने मन में सेट किया है कि 30 मिनट्स का मैं इसको दे रही हूँ PS4, बट यू टेल हिम इट इज फॉर 15 मिनट्स। After 15 minutes, you give him the choice. You want more or finished? If he's able to give it up in 15 minutes, what more we want? So if he chooses finished, okay. Otherwise, if he chooses more, then you said, okay, more, but this is your second round. So this is the alarm now. More only for this much time. So they get that concepts also along with that. Right. Thank you. Thanks a lot, Khushbu. So this is how basically, yeah. Okay, dear. Hi, Dr. Khushbu. Hi, Ritu. Ma'am, I wanted to ask, like, my son is 4.7. बोलो प्लीज। एक चीज मैं आप लोग सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आई स्टार्टेड दिस जर्नी एज अ पेरेंट, प्लीज कॉल मी खुशबू प्लीज। Okay, fine. Yeah. My son is 4.8 now, and he is like more into swing. He likes swing so much that whenever I tell him to get out of the swing, he will cry a lot, or he gets irritated so much that since morning, from after he gets up, he wants the swing. The first thing he wants is the swing. And then when I ask him to do any other activity or any other thing, he will cry a hell, like hell. Yes. And so what you do is, हाँ जी बोलो आप। हाँ नहीं, sorry, खुशबू, you can continue. Yes. So वही आई वाज सेइंग कि क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हर बच्चे की कुछ 2-4 चीजें फेवरेट होती हैं ऑन विच दे आर नॉट रेडी टू गिव अप, कि हम नहीं खत्म कर सकते, हमें तो यही चाहिए, इट कैन जस्ट गो फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। So you have to bring in the cards and alarm and a schedule there actually. तो जैसे उठते से उसको स्विंग चाहिए होता है ना, आप एक व्हाइट बोर्ड पे या आपके डोर पे अगर आप मार्कर से लिख सकते हो, या किसी कोई भी ऐसी चीज जहां वो उठ के देख सके, तो आप वहां पे लिख दो स्टार्ट, चलो स्विंग, ठीक है, बट स्विंग के बाद ब्रश के बाद सो एंड देन अगेन स्विंग, बट फॉर 2 मिनट्स। फिर वो उसके बाद अलार्म लगेगा, फिर उसको देखिएगा कि अच्छा एक चीज और करूंगा मैं तो फिर मुझे स्विंग मिलेगा, फिर मैं 2 चीज और करूंगा। तो आप उसको दो, मल्टीपल टाइम्स दो, बट रिड्यूस द ड्यूरेशन ईच टाइम, तो वो स्टिमुलेशन भी ऑप्टिमम मिलेगा, जो उसकी सीकिंग है वो भी जो उसकी नीड है वो भी सेटिस्फाई होगी, वट एवर ही सीकिंग फॉर, बट यू कैन रेगुलेट इट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड यू नो उसकी जो जिद है वो खत्म हो जाएगी बेसिकली। Okay, and one more thing. हाँ जी। Whenever I make a schedule for him कि 1 hour में हम ये करेंगे उसके साथ, and he knows that, but still if we start with writing, he will hold the pencil, and if he'll write A, he'll hold the pencil and keep on staring here and there. He will not like write. Then I'll have to force him, write karo, and then he will write. And then the time gets over and we are not able to finish the things in the scheduled time. It happens, but don't worry about that. First, try to get the schedule thing in place. कि अच्छा हमने ये किया तो ये किया. Now, say suppose you have 10 things in the schedule and you are facing issues with 2 activities. One is writing and the other one could be anything else. तो हम writing के immediate बाद कोई ऐसी activity रखो which he really wants. Like ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए. And then you tell him ये चीज फिनिश नहीं हुई अगर, तो हमें ये कैंसिल करना पड़ेगा. कैंसिल, यू इंट्रोड्यूस द वर्ड कैंसिल देयर, एंड कैंसिल करके चेंज करके ये हो जाएगा. एंड देन यू सी हाउ ही इज डूइंग इट. इफ ही इज लाइक ऑलरेडी ट्रेन्ड ऑन writing is a separate skill altogether. So if you
know that he has reached at a particular level, but it is just out of reluctance he is not doing it. मन नहीं कर रहा, distractions हैं, दुनिया की सब चीजें हमें करनी है क्योंकि हमें writing करना पसंद नहीं है. So this is how you can work on that. But otherwise if you're working on developing that skill, तो उसको एक अलग से आप अलग time, like keep it out of the schedule. Later अलग अलग तरीकों से first work on the pre-writing skills and then gradually move to working on the writing part. Sorry to interrupt. हाँ जी, बोलिए ना. ये लाइक उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं है, लाइक कोई ऐसी एक्टिविटी ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड अदर देन द स्विंग और बाउंसिंग ऑन द बॉल. ओके, तो बस वही है, जो बाउंसिंग और स्विंगिंग एक्टिविटी है उसको मतलब बहुत ज्यादा वेस्टिबुलर इनपुट चाहिए. और सिटिंग एक्टिविटीज उसके लिए उसकी अनप्रेफर्ड एक्टिविटीज है. मूविंग एक्टिविटीज, वेस्टिबुलर इनपुट, प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट उसको ज्यादा चाहिए. So here again what you can do is, now this was suggested to me by my developmental pediatrician. उन्होंने मुझे ये बोला था, एक टेबल टॉप एक मूवमेंट एक्टिविटी, एक टेबल टॉप एक मूवमेंट एक्टिविटी, एंड इफ यू वांट, इफ देयर आर सेंसरी इश्यूज, बीच बीच में एक सेंसरी भी डालो. सो समथिंग सिटिंग, देन ये आपका मूवमेंट, and then a sensory activity. Sensory could be sitting or moving, any ना. Proprio and vestibular is also sense, but again थोड़ा सा movement related हो जाता है. There are other tactile, olfactory, ये सारे हम बैठे बिठाए भी कर सकते हैं. So you try and prepare his schedule in this way कि एक हमने sitting activity की, फिर एक movement, फिर एक sitting, फिर एक movement. तो क्या होगा, अंदर से उसको जब थोड़ा easy लगने लगेगा, comfortable लगने लगेगा, तो he will perform better. Perform in terms of as in he will respond better to you, respond better to the schedule ना. तो ये आप एक थोड़ा सा modification करके देखिए. Okay, thank you. Yeah, okay dear. Yeah. That Okay guys, any more questions? Hi Khushbu, this is Mugdha. Yes dear. This is the first time I'm listening to this session. Okay. Actually, Madhuri Khandelwal is a friend of mine. She gave your... Yes, yeah. She did message me about you. So I feel really nice listening all this information today. So actually, मेरा son 2.5 years का है, and recently we have came to know कि उसे autism, like red flags of ASD है. Okay. So he is not verbal yet. Like थोड़ा बहुत ABCD 1 2 3 4 ये सब बोल सकता है, but he doesn't at such मम्मा या फिर ऐसे जो calling है पापा, ऐसे कुछ नहीं करता है वो. So even if he wants, तो how can I use? Actually, you are mute. You got mute. Yeah. Sorry. So what I was saying is, अभी इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी पेरेंट्स हैं, वी ऑल हैव बीन थ्रू दैट फेज जहां आप अभी हो, जब हमें ये पता भी नहीं है कि हमारे बच्चे का क्या डायग्नोसिस है एग्जैक्टली, सच में ये प्रॉब्लम है, इशू है, चैलेंजेस हैं भी कि नहीं. तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड अभी आपका माइंडसेट कैसा होगा, मेंटल माइंड फ्रेम कैसा होगा, बट यू नो द बेस्ट वुड बी हम जितनी जल्दी उस चीज को ओवरकम करके और यू स्टार्ट वर्किंग विथ योर चाइल्ड, द बेटर ही विल, द क्विकर ही विल रिस्पॉन्ड. आपने बोला अभी उसको अल्फाबेट्स और नंबर्स आते हैं. आपको पता है जब हम अपने स्पीच थेरेपिस्ट के पास मुंबई में गए थे, हमने बहुत नाम सुना था उनका, और उस टाइम पे वियान का एग्जैक्टली यही लेवल था. ही न्यू ऑल द नंबर्स अप टू 20. He knew all the alphabets, he knew all the colors, shapes, ये सारी चीजें उसको आती थी. जब हम उसके पास गए तो उसने पूछा हमसे कि बच्चे की vocabulary कितनी है, and she is very shrewd. She is too good in her work, but very very rude and a shrewd person to talk to. I won't name her, but as a speech therapist, she is like one of the renowned ones, and her techniques are again too good. But the way she talks to parents, the way she deals with children, हम वो बहुत सेशंस तक हमसे नहीं टॉलरेट हुआ. तो अगेन लाइक आई हैव picked ideas from everywhere. I picked ideas, I learned how she works, and then I started working with Vian at home itself. तो उन्होंने हमको एक चीज बोली थी जो बिल्कुल घुस गई दिमाग में. She said numbers, alphabets, rhymes, ये जितनी भी ऐसी चीजें हैं ना जो एक स्टैंडर्ड है,
ये हम लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, ये स्पीच बोलेंगे एंड बी हैप्पी अबाउट इट, गो होम, सेलिब्रेट that my child is verbal. So at least you don't have to work on the speech part. ठीक है, तो हमारे बच्चे की स्पीच आ गई है. Now we have to work on building his language, and you probably are starting it at the very right time if you decide to go for the visual cards. हमने डिले किया. जब पहली बार हम अपने थेरेपिस्ट के पास गए और उन्होंने गाइड किया, वी टुक हर फॉर ग्रांटेड और हमें लगा कि यार सब बेकार है एंड दिस इज जस्ट नॉट वर्किंग. इतने टैंट्रम्स हुए, इतने मेल्टडाउन्स हुए बिकॉज हम गलत तरीके से यूज कर रहे थे. आई वॉज फोर्सिंग द स्केड्यूल ऑन हिम, आई वॉज फोर्सिंग द कार्ड्स ऑन माई चाइल्ड कि यही करना है, ये नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा. हमने तुमको सिखा दिया एक्सचेंज करो, तुम लाके ही नहीं दे रहे हो, अब हम कुछ सुनेंगे नहीं. खाना नहीं देते हम उसको 2-2 घंटे, मतलब he literally used to cry and I was not giving him food because he was not bringing the card. Can you imagine what I have done? But then later on when we understood the right way to work with it, his language, like he picked up on language like anything. People who know me on the group from like last 1 or 2 years, they have seen Vian literally growing from one word to 2 words to with all the fears going away, all the anxiety going away, and how he has beautifully grown up in terms of language, in terms of everything. तो मुग्धा, आप डेफिनेटली कार्ड्स बनाओ. आपको और हेल्प चाहिए, आप वो ग्रुप की लिंक माधवी से ले लेना. यू जॉइन द ग्रुप. देयर आर मेनी अदर ग्रुप्स आल्सो ऑन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप where you will get a lot of support. But in case you don't feel थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है स्टार्टिंग में, आई अंडरस्टैंड, हमारा मन नहीं करता बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड लेने का, तो यू कैन ज्वाइन एनी वन ग्रुप where you feel like on Sigan Mantras I have only shared all the activities that we have been doing at home so far, and अभी हमने recently start किया है topic wise discussion. If you feel like and if you feel that this will help you work with your child, you are most welcome to join it. There are other groups also, Rajni ma'am's group, Manju's group, where they are helping by answering all sorts of questions that you have. There's Dr. Neha's group. बहुत सारे groups हैं which are very supportive, very helpful. तो आप माधवी से details ले लेना. She will definitely help you with all the links. But this is the right time when you work in the right direction with him. Okay. Can I like talk to you in some other way, like after this session? Sure. Why not? Yeah. I'll just drop. You take my number from Madhvi and drop me a message, and then we can coordinate on the time and connect. Thank you. Thanks a lot. Yeah. Okay, dear. Hello, yeah, Dr. Khushbu, this is Vinita. Yes, Vinita. Yeah. I was just about to read your question only. Okay, ma'am, please. I mail you so many questions, so please. No problem. I was just, about to ask कि अगर कोई और questions नहीं है, तो I had your question here. तो अब आप live ही हो, तो आप पूछ लो ना. Why do I read it from here? आप पूछ लो. मैम, फर्स्ट क्वेश्चन यही था, मतलब ये कि अगर मैं शेड्यूलिंग करती हूँ जैसे, तो क्या मतलब मुझे पहले से उसके माइंड को प्रिपेयर या इसको शो करना पड़ेगा कि ये इसके बाद आपको ये करना है, आपको ये करना है, ये करना है? क्योंकि मैं अगर उस तरह करती हूँ तो उसको वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है. उसका मतलब वो कि उसके बाद मुझे ये करना, नहीं मुझे नहीं करना है, लाइक दैट. हाँ, नहीं, एग्जैक्टली. तो ये चीज एक बार ग्रुप पे किसी एक पेरेंट ने भी शेयर की थी कि इसके बाद मुझे ये करना है, ये देख के ही बच्चे की एंजाइटी बढ़ जाती है कि अरे यार मुझे ये करना पड़ेगा. लो, हम पहले ही एंग्शियस हो गए. तो यू स्टार्ट विथ अ वेरी स्मॉल स्केड्यूल. से सपोज आधे घंटे का, जिसमें सिर्फ 2 एक्टिविटीज हैं. तो दिन भर में आप कुछ मत बोलो उसको स्केड्यूल के लिए, बट फॉर 2 एक्टिविटीज दैट एट 2 o'clock हम लंच करेंगे, उसमें भी एक तो एक्टिविटी मत करो, आप एक मील टाइम कर दो और उसका फेवरेट फूड बनाओ आप उस दिन. तो 2 o'clock पे लंच. उसके पहले अगर वो खाना मांगे भी, भूख लगी भी है, इफ ही इज एक्सप्रेसिव,
तो नहीं बेटा, लंच इज एट 2 टाइम। अब वो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। एंड देन फॉलोइंग लंच 2:30 पे, सपोज उसको आधा घंटा लगता है खाना खाने में, तो 2:30 आपने टाइम लिखा और 2:30 पे हम ये करेंगे, विच शुड बी हिज लाइक फेवरेट एक्टिविटी। फिर धीरे धीरे आप उसको आधे घंटे से 1 घंटे का स्केड्यूल, अब उस 1 घंटे में 2 की जगह 6-7 कार्ड्स आ गए, पिक्चर टाइम भी आ गया। एंड देन डोंट फोर्स हिम अ लॉट। उसको नहीं चाहिए ना, तो जस्ट शो हिम दैट अच्छा तुम्हें नहीं चाहिए, तो वी आर पुटिंग अ क्रॉस ऑन दिस, कैंसिल। ये कैंसिल किया तो क्या चाहिए, ठीक है हमने इसको कैंसिल किया, अभी आपको क्या चाहिए, फिर वो चीज का हम वहाँ पे कार्ड लगाएंगे। या अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हो या ड्रॉ कर रहे हो, तो वो उसको दिखा के आप करो। तो ना वही जो अभी हम बात कर रहे थे जयश्री से, कि जब चॉइस मिलती है ना कि हमें भी हक है अपने लिए कुछ चूज करने का, तो दे फील हैप्पी एंड the performance is better. ओके मैम, लेकिन चॉइस जो अगर जिस चीज में अभी जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो करनी ही करनी है, तो राइटिंग पार्ट है या मतलब स्टडी रिलेटेड चीजें हैं, अभी उसके उसकी लिए तो एज फिर हम कितनी है? एक्चुअली ही इज गोइंग फॉर फर्स्ट स्टैंडर्ड नाउ, 6 ईयर। ठीक है, 6 ईयर है। तो और लैंग्वेज वाइज ही इज ओके मैम, मतलब WH क्वेश्चंस एंड ऑल ही इज एबल टू से, बट एंजाइटी बहुत ज्यादा है और रिजिडनेस बहुत ज्यादा है, वो आपको मैंने शेयर किया, ये आपने देखा भी। राइट। तो आपने मुझसे पहले क्या क्वेश्चन पूछा था हम डिस्कशन में? मैं शेड्यूलिंग का वही हाँ, कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं और करानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा विनीता, हर चीज कराने के ना तरीके हमें बदलने पड़ेंगे। जैसे अभी अगर मैं वियान का एग्जांपल लूं, तो ही इज ऑल्सो इन grade 1, स्कूल उसको नहीं अटेंड करना, हमें वर्कशीट नहीं करनी, तो मैंने उसको स्कूल की वर्कशीट्स देना बंद कर दिया। अब वैसे भी आप देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ गई है, उसके हिसाब से भी हमारे बच्चों को चीजें आनी चाहिए, उनके एज के हिसाब से, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के हिसाब से जितना उनको आना चाहिए वो सिखाना हमारा काम है, इवन इफ दे डोंट परफॉर्म ऑन द बुक्स। अभी आप मानोगे नहीं, इसके एग्जाम्स कल खत्म हुए हैं, स्कूल टेस्ट चल रहे थे। ही हैज नेवर गिवन एनी फॉर्मल टेस्ट। इसके पहले जिस प्ले स्कूल में जाता था, जूनियर केजी इसका स्किप करा के मैंने सीनियर केजी में डाला। सीनियर केजी इसका मोर देन 8 months स्कूल मिस हुआ बिकॉज ऑफ माई ट्रेवल्स फॉर बीएड एंड ऑल, सो ही कुड नॉट गो टू स्कूल। मार्च में इवेंचुअली ये गया और लॉकडाउन हो गया, 4 दिन भी नहीं गया होगा, लॉकडाउन हो गया। सो ही इज टोटली आउट ऑफ सिंक फ्रॉम दैट स्कूल वाला थिंग, एंड ही वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड टू ज्वाइन हिज न्यू स्कूल फॉर grade 1, जो इसमें चला गया ऑनलाइन मोड में बिकॉज ऑफ कोरोना आउटब्रेक। ही इज जस्ट नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि स्कूल ऑनलाइन भी हो सकता है। ये कैसा स्कूल है, देयर इज नो प्लेग्राउंड, देयर इज नो टीचर्स, देयर आर नो फ्रेंड्स, देयर इज नो कलरफुल चार्ट्स ऑल अराउंड, ये कैसा स्कूल है? ही इज जस्ट नॉट रेडी एंड आई एम नॉट फोर्सिंग हिम। हाउ डज इट मैटर? उसको जो आना चाहिए वो आना चाहिए। अब टेस्ट हुए जब, सो आई रिसीव द टाइम टेबल, और उसकी मैम ने मुझे अलग से कॉल किया कि मैम नो प्रॉब्लम, इफ इवन इफ यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लासेस, बट दीज मार्क्स विल काउंट, सो इफ पॉसिबल प्लीज डू द टेस्ट। और उसका उन्होंने एक टाइम सेट किया कि 5 o'clock पे हम पेपर अपलोड करेंगे और 6:15 तक आपको सबमिट करना है, अदरवाइज पेपर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो मैंने वियान को सिर्फ इस चीज के लिए प्रिपेयर किया। मैंने उसको ये नहीं बोला कि तुम्हें पेपर में ये लिखना है और वो करना है, मैंने उसको सिर्फ इस चीज के लिए अलग से प्रिपेयर किया कि 5 to 6:30 एक वर्कशीट स्कूल से आएगी, ओनली फॉर 4 days, एंड वी हैव टू डू दैट। तुम्हें जो बने तुम करना, मम्मा विल नॉट फोर्स यू, मम्मा विल सिट विथ यू, if you ask me you can ask me, but this is the time when you have to leave everything and come for the worksheet. And for those 4 days I did not give him any schedule, I let him free for the entire day, तुम्हें जो करना है करो, and in a very play and fun way। जैसे मैथ का टेस्ट है, I know what is the syllabus, I did not make him practice on the worksheets, I did not make him practice in his workbook। मैंने randomly इससे questions पूछे in different formats, increasing order, largest to biggest। मम्मा के एक हैंड में ये है, एक हैंड में ये, और एक ये वियान का हैंड है, हमको कौन सा हैंड पहले रखना चाहिए, कौन सा नंबर पहले आता है। सो यू सी, अलग अलग से खेल खेल में आप करो ना, पूरा मैथ्स का रिवीजन किया, बैठ के मजे से पेपर किया, एंड ही इज डन इट फुल्ली करेक्ट, आई मीन फुल्ली करेक्ट। ईवीएस की बुक नहीं है हमारे पास, बुक इज अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ दोज बुक्स इज इन स्कूल, और ईवीएस की से एक भी क्लास अटेंड नहीं की है। तो ईवीएस में आई जस्ट हेल्प्ड हिम इंटरप्रेटिंग द क्वेश्चन, आंसर्स मैंने कहा तुम्हें जो मन में आ रहा है लिखो, मेरे से स्पेलिंग पूछनी है मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूंगी, बट आंसर्स नहीं बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज अ स्मॉल फैमिली, पूरा सेंटेंस में लिखना है आंसर।
नाउ सीनियर केजी में सिखाया था न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर एंड जॉइंट, अब आ गया स्मॉल एंड जॉइंट फैमिली, तो आप किड्स गेट कंफ्यूज। हाँ, अब आप किड्स गेट, नहीं स्मॉल और वो है जॉइंट, स्मॉल और लार्ज नहीं है, वो होता ना तो इट वुड हैव बीन इजी फॉर मी। Now the question is, what is a small family? अब वो he got stuck there. What do I write? What do I write? तो वो लिख नहीं रहा था, मैंने उसको कुछ नहीं बोला, वो बैठा बैठा बैठा, मैंने उसको इतना बोला कि अगर ये क्वेश्चन नहीं बने तो अगले पे चले जाओ, अगले पे चले जाओ। आखिरी में जब उसके पास टाइम बचा तो मैंने उससे पूछा कि व्हाट टाइप ऑफ फैमिली डू यू हैव? तो बोलने लगा जॉइंट। मैंने कहा जॉइंट फैमिली क्या होती है? मतलब फिर हमने वहाँ पे अपना डिस्कशन वहाँ पे चालू किया कि पेपर सबमिट करने में टाइम है ना, तो हम करते हैं डिसाइड, चलो तुम्हें आंसर आ रहा है कि नहीं। तब मैंने उसको वो कॉन्सेप्ट समझाया। बट अदरवाइज इफ आई टेक दिस प्रेशर कि आज सीवीएस टेस्ट है, हमें कुछ नहीं आता, हमने एक भी क्लास अटेंड नहीं की है, अभी वर्कशीट करो, अभी प्रैक्टिस करो, आंसर कैसे लिखते हो, तो कुछ नहीं होता। मतलब हम ही अपना काम लूज कर जाते हैं, तो बच्चों के साथ तो इट इज इवन डिफिकल्ट। तो इफ देयर इज समथिंग रियली इम्पोर्टेंट, find out different ways of doing it, whatever it is, be it writing, be it reading, be it any activity, जो भी है, do it in different ways. और एक्चुअली मैम अगर कोई पैटर्न सेट करते हैं तो मतलब मेन इशू क्या होता है कि अगर ये किसी पैटर्न में जाता है और कुछ चेंज आता है तो वो भी प्रॉब्लम इसको है, वो एक्सेप्ट नहीं करता जल्दी कि अभी मैं आज डेली ये टाइम पे ऐसे ये मैं करता था, अभी कुछ और करना है, तो वो उसमें उसका मतलब फुल बिहेवियर पे शुरू, नहीं मुझे तो वही चाहिए, वही करना है, ऐसे ही करना है, तो वो उस पैटर्न को पैटर्न ब्रेक होगा जब स्केड्यूल में वो चीज दिखने लगेगी ना कि ये चीज मुझे इतने 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 बजे मिलेगी, एंड यू हैव टू बी फर्म ऑन दैट। जैसे मान लो उसकी फेवरेट क्या चीज का अभी लेटेस्ट फिक्सेशन है? एक्चुअली मेन क्या हुआ था कि अभी जैसे इसका क्लास होता है तो वन टीचर रहती है, ऑनलाइन जैसे क्लास होता है तो वन टीचर, बीच में क्या हुआ कि मोर देन मतलब 2 टीचर आ गई, तो वो भी उसको एक्सेप्ट नहीं, मुझे तो वन टीचर से ही कम्युनिकेट करना है, मुझे उन्हीं से वो करना है, मुझे और टीचर के साथ नहीं, तो वो भी बिहेवियर मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करना है कि नहीं, मैंने जो कि इसको पहले से प्रिपेयर किया था कि आज तुम्हारा जो है तुम्हारी डेली जो मैम रहती है वो तो रहेंगी, उनके साथ एक टीचर और रहेंगी, ऐसे, लेकिन वो नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे वन मेरी प्रीति मैम ही चाहिए, तो वो चीज एक्सेप्ट करना उसको वहां पे भी प्रॉब्लम है कि मुझे एक्सेप्ट नहीं करना मेरे जिसके साथ, तो वो इश्यूज भी रहते हैं, वो मतलब ये एक नॉर्मल एग्जांपल है, ऐसे हर चीज में है। तो क्या होता है ना, अब जैसे स्कूल इज ऑन स्क्रीन सामने होता तो वो टीचर्स भी थोड़ा सा मतलब वो जो प्रीति मैम है वो थोड़ा इससे फ्रेंडली होने की कोशिश करती, अलग तरीके अपनाती। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको टीचर के साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा दैट शी हैज टू एक्चुअली मेक हर एक्सेप्टेबल टू द चाइल्ड। तो अगर इसकी स्टार्टिंग आप पहले घर से करो, घर में जिन चीज़ों की रिजिडिटी है, जो फिक्सेशंस है, उसको आप ब्रेक करो बाय गिविंग हिम दैट पर्टिकुलर थिंग एट रेगुलर टाइम्स। जैसे कोई अगर ऑब्जेक्ट का फिक्सेशन है या कैसे बोलना चाहिए, आप मुझे घर वाली कोई चीज़ बताओ ना, बिकॉज दिस समथिंग ऑन स्क्रीन इज एक्चुअली little difficult to start with when it comes to breaking the patterns. जैसे मतलब उसको है कि कोई इवन नॉर्मल चीज है, जैसे इसके फादर की कार पार्किंग, अगर उन्होंने कार एक तरह से पार्क की है, अगर वो चेंज करते हैं उसको मतलब उल्टा पार्क कर दिया, तो वो भी पूरी टाइम पापा आपने उल्टा, पापा उसको सही करो, उसको सही, मतलब अगर वो अंदर बेसमेंट में नहीं पार्क किया, बाहर पार्क कर दी है, तो वो भी इशू है। मतलब उस तरह की ये छोटी छोटी चीजें जो मतलब एक्सेप्ट करना कि नहीं है, हम जो कि उसको समझाएंगे कि नहीं अभी हमें ऐसे पार्क किया है क्योंकि स्पेस नहीं था ये वो, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना है उसको, फिर उसमें मैं आपको बताती हूँ, ये एग्जैक्टली ऐसी ही चीजें वियान के साथ भी थी। मतलब जो चीज हमें जैसी अच्छी लगती है वैसी ही होनी चाहिए, या जो चीज हम हमेशा देखते आए हैं हमें वैसी ही चाहिए। तो इसके लिए ना एट दैट मोमेंट अगर आप बोलोगे ना, जैसे कार पार्किंग का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, उस टाइम पे जब आप कार पार्क कर रहे हो और वो कह रहा है कि ऐसे मत करो ऐसे मत करो, और आप उस टाइम समझाओगे, वो नहीं समझेगा और वो जिद करेगा। वो ऊपर आने के बाद भी यही बोलेगा कि आपने वहां क्यों पार्क की, अभी चलो ठीक करो, है ना। ऐसे वियान भी करता था। तो इस चीज के लिए वो चीज होने के पहले मतलब आपको पता है कि बिहेवियर किस चीज से आ रहा है ना। यहाँ पे अब आपको एबीसी थ्योरी लगानी पड़ेगी। ये बिहेवियर किस चीज से आ रहा है?
कार को गलत पार्क करने से, या कोई भी चीज जैसे एक सेट पैटर्न में है, आज हम पैटर्न चेंज करने वाले हैं, तो यू हैव टू प्रिपेयर हिम बिफोर हैंड। जैसे मान लो आप मॉल से लौट रहे हो और आप वहीं से उससे बात करते हुए आओ कि आज हम कार को यहाँ नहीं यहाँ लगाएंगे, वो रोएगा, फिर उसको वहां समझाओ, सो दैट एट द मोमेंट जब आप कार पार्क कर रहे हो तब तक वो सॉर्टेड है। तो आपको जो भी स्टोरी सुनानी है कि पता है वहां पे ऐसा हो जाएगा अगर ऐसे पार्क किया तो, और हमें बदल बदल के कार पार्क करनी चाहिए, मतलब वो आपकी गिवन सिचुएशन में जैसी भी रेलेवेंट है, यू बिल्ड स्टोरीज अराउंड दैट एंड एक्सप्लेन टू हिम कि ये चीज तो करना पड़ेगी, इससे अच्छा ही होगा, एंड यू विल गेट सो मच दिस इज फन, दिस इज सो मच फन टू डू। तो ऐसे कर करके ना हर चीज का आप एंटीसीडेंट ट्रैक करो कि क्या चीज इज लीडिंग टू इट एंड वर्क ऑन द एंटीसीडेंट ना। ही जितना मुझे समझ में आया, एकदम अगर कॉन्सिक्वेंस इम्पोज किया कि नहीं ये तुम अगर करोगे तो ये कॉन्सिक्वेंस होगा। एबीसी डेटा वो मतलब हमने ट्राई भी किया था, वो डेटा करके उस तरह बनाने का कोशिश भी किया था, तो वो रहता है, लेकिन फिर भी उसका बिहेवियर जो है पार्ट जो है ना, मैं बहुत ट्राई करती हूँ, इवन प्रिपेयर माइंड प्रिपेयर उसका पहले से ही स्टार्ट कर देती हूँ कि हाँ मतलब ये ऐसा होना है अभी ये, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना। इवन ये भी है कि रिंग पोस्टमैन भी जैसे मतलब उसको जो है ये काम करना है, नहीं वहां पे आपको, हाँ वहां पे रीइंफोर्समेंट या फिर कॉन्सिक्वेंस आएगा कि आपको ये चीज समझा दी, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान है, ये गलत है, ये सही है, ये फन है, ये वट एवर यू डन। उसके बाद भी अगर बिहेवियर आ रहा है तो फिर आप उसको एक्सप्लेन करो, और उसके बाद भी अगर आप ऐसा करोगे तो आपको स्विंग नहीं मिलेगा। स्विंग पता नहीं आप बोल रहे थे कि कौन बोल रहा था, पर जो भी उसकी फेवरेट चीज है, तो फिर अगर उसके बाद ये बिहेवियर हुआ तो पूरा एक दिन तुम्हारा ये टॉय गया या ये एक्टिविटी गई। और उसको कुछ मत बोलो, वो रो रहा है, वो तमाशे कर रहा है, वो डांट रहा है, वो मान नहीं रहा है, वो अच्छे से भी बोल रहा है पर गलत चीज बोल रहा है, पर उसकी वो चीज गई। सो दैट इज द कॉन्सिक्वेंस यू हैव टू बेयर। पर आपने कहीं भी ना उसको डांटा ना गुस्सा किया, आपने अपनी बात बाइज्जत रखी, उसको टाइम, उसको स्पेस दिया to respond in the right way, but still if he gets into that behavior, so he should get the message very right here कि बेटा अगर ये किया तो ये चीज तो हाथ से गई, अगली बार फिर आप देखो, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, तीसरी बार बिल्कुल ट्रैक पे आ जाएगा। बहुत सारे बिहेवियर्स इन चीजों से ना ठीक होते हैं, और कॉन्सिक्वेंस वर्बली बोलोगे ना तो शायद नहीं समझ में आएगा। अगेन यहाँ पे अगर आप लेट मी टॉक ऐप या लिख के कार्ड्स के थ्रू सब बताओगे ना कि ये चीज आज ऐसे होने वाली है, अगर ये आप इसके बाद भी आप गुस्सा करोगे तो ये आपको नहीं मिलेगा, तो ये नहीं मिलेगा उसका कार्ड, और क्या करने वाले हैं हम उसका कार्ड। तो एक या 2 चीजों में बस आपको करने की जरूरत है, सब में भी नहीं करना पड़ेगा। आप देखो धीरे धीरे कैसे सारी चीजें डाइल्यूट होती हैं। तो जहाँ पे बिहेवियर आ रहा है वहीं पे विजुअल कार्ड और ये सब शेड्यूलिंग करनी है कि वहां से स्टार्टिंग से नहीं, वहां से आप स्टार्ट करो, लेकिन आई वुड सजेस्ट विजुअल कार्ड्स। अच्छा अभी मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करती हूँ। अभी अपेरेंटली आप लोगों को लगता होगा वियान के वीडियोस देख के कि उसके कोई बिहेवियर्स नहीं है ना, इतना अच्छा लैंग्वेज, इतना अच्छा कम्युनिकेशन, बट मैं आपको दिखाती हूँ। मैं करंटली एक सेकेंड, आई विल हैव टू शेयर माय स्क्रीन। मैंने कुछ पिक्चर्स भी नेट से डाउनलोड किए थे, मैं वो भी एक बार फटाफट दिखा देती हूँ। हाँ, ये आपको जो आप लोगों को दिख रही है ना मेरी स्क्रीन? हाँ, तो ये अभी आप देखो, मैंने एक क्योंकि वो बोर्ड पे आजकल ड्राइंग कर रहा है तरह तरह की, तो ही डजंट गिव मी बोर्ड, तो आई ऑर्डर्ड दिस व्हाइट बोर्ड शीट फ्रॉम Amazon, जिसपे हमने एक स्केड्यूल लिख के रखा है। नाउ आई डोंट डू दिस ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस, but the day I see that he's not listening to me and he's getting into that चिड़चिड़, डांटने वाला मोड, aggression, oppositional behavior, इस तरह की चीजें अगर आती है ना, before I lose my calm, I put up the schedule कि बेटा अब हमें ये फॉलो करना है। तो ये हमारा लेटेस्ट स्केड्यूल है जो मैंने मंडे के लिए बना के रखा है, उसके लिए कि 8 o'clock you have to wake up, 8 to 8:30 ब्रश पॉटी सब करेंगे, 8:30 to 9 o'clock एक्सरसाइज, लेमन वाटर पीना पड़ेगा। लेमन वाटर इज अ न्यू इंट्रोडक्शन फॉर हिम, सो आई हैव टू मेंशन इट इन द स्केड्यूल, अदरवाइज ही विल नॉट ड्रिंक इट, वो फिर उसके टैंट्रम्स होते हैं।
फिर 9 to 10:30 स्कूल या स्टडी. नाउ इफ ही इज नॉट रेडी टू अटेंड द स्कूल क्लासेस देन दिस इज स्टडी टाइम. मम्मा के साथ पढ़ना है मम्मा के साथ पढ़ो, खुद से पढ़ना है खुद से पढ़ो, कोई स्टोरी बुक निकाल के पढ़नी है वो पढ़ो, बट दिस इज नॉट द टाइम फॉर यू टू प्ले विद द टॉयज और एनीथिंग. दिस इज स्टडी टाइम. अब उसमें उसको एक लेवरेज दे दिया कि ठीक है भले मत स्कूल अटेंड करो बट यू हैव टू बी विथ योर बुक्स. तो ही गेट्स दिस क्लियर कि ये सब करूंगा तो मुझे 12:30 बजे PS4 मिलेगा, और अगर मैंने ये सब नहीं किया इसमें से एक भी चीज स्किप हुई तो ये तो कट हो जाना है. वो उसको मैं अलग से दिखाती हूँ, मतलब वो कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है वो अलग से उसको पेपर में, उसकी एक डायरी है उस पे लिख के बताना पड़ता है कि इफ यू डोंट फॉलो दिस देन दिस इज गोइंग टू हैपन. सो दिस इज लाइक अ डेली स्केड्यूल. अपार्ट फ्रॉम दिस एक ये है जो हमने फ्रिज पे लगा रखा है. Yes. तो ये अभी बहुत टाइम से मिटा नहीं है क्योंकि somehow ये स्केच पेन से लिखा मैंने तो वो इरेज नहीं हो रहा है. बट दिस इज हाउ वी एक्चुअली पुट अप अ ब्रॉड स्केड्यूल फॉर द वीक, और उसको डे वाइज कैसे ब्रेक करना है. फिर उसको अब जैसे आप देखो पिछले इमेज में एक था एक्टिविटी टाइम. अरे यार ये एक मिनट. इसमें हमने कहीं पे कुछ ये है ना 3:30 to 4:30 एक्टिविटी टाइम. अब एक्टिविटी टाइम कुछ भी हो सकता है. देन आई गिव हिम अ चॉइस कि क्या एक्टिविटी करनी है. चार्ट एंड क्राफ्ट करना है, कुछ गेम्स खेलने हैं, हम कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं. आपको जो करना है करो, कलरिंग करना है, पेंटिंग, ड्राइंग, बट इट हैज टू बी सम एक्टिविटी. और कुछ नहीं करना तो मेरे साथ किचन में चलो, बर्तन धोएंगे, बर्तन जमाएंगे, दैट इज ऑल्सो एन एक्टिविटी. वो भी नहीं समझ में आ रहा चलो कपड़े फोल्ड करो, पर जो तुम कर रहे हो या फिर जो बच्चा कर रहा है उसमें आप इन्वॉल्व हो जाओ. चलो ठीक है तुम्हारी एक्टिविटी हमारी एक्टिविटी आज. तो लाइक दैट है ना. मैं मोटिवेट कैसे करूँ उसको एक्टिविटी करने के लिए? वो तो आपको रीइंफोर्सर्स थोड़े से फाइंड आउट करने पड़ेंगे विनीता. क्या चीज उसको बहुत अपीलिंग लगती है और एकदम थोड़ा आउट ऑफ प्रपोर्शन जाके यू हैव टू मेक इट अ लॉट ऑफ फन फॉर हिम. उसने क्या कर दिया है कि जैसे उसको मोबाइल गेम ये पसंद है तो वो बोलेगा कि मुझे ये भी नहीं करना और ये भी नहीं चाहिए. हाँ तो उसको क्या चाहिए उस टाइम पे, वो क्या मांगता है? नहीं मतलब मुझे कुछ नहीं करना. हाँ नहीं, पर उस कुछ नहीं वाले टाइम में क्या करना है एग्जैक्टली? वो सिंपली जो है या जंपिंग करेगा इधर से उधर, या फिर जिम बॉल पे अपना बैठ के आजकल बैलेंस बनाना वो करेगा, यही करेगा. नहीं तो आपको 2-3 दिन डेडिकेशन के साथ पूरा स्केड्यूल बना के और उसको फॉलो करवाना पड़ेगा तो ही ये चीज करेक्ट होगी. स्केड्यूल एज इन भले आप ब्रॉड स्केड्यूल बना लो, बीच बीच में उसको टाइम फ्री दो आप कि ये तुम्हारा टाइम जंपिंग का है, बट ये इतनी देर तुम्हें बैठना ही, भले मत करो ना, मत करो राइटिंग, मत करो ड्राइंग, बट ये ड्राइंग कॉपी के साथ बैठो. धीरे धीरे उसको समझ में आएगा मेरे को कुछ करना ही नहीं मिलता, मैं यहीं स्टक हो गया हूँ, तो बेटर है भैया कर लो, तो फिर जंपिंग भी करने मिलेगी, ये कर लूंगा तो मेरे मन की भी 2-3 चीजें मिल जाएंगी. तो आप ट्राई करके देखो, ट्राई टू इंट्रोड्यूस थोड़ा सा एक ग्रॉस स्केड्यूल, फिर आप मुझे बताना 15-20 डेज बाद एक है ना, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट मारो आप, बताना. मतलब फुल शेड्यूल स्टार्ट करें मॉर्निंग से पूरा प्रॉपर वे से, कि ब्रेक टाइम और ये टाइम सारा पूरा प्रॉपर वे से शेड्यूलिंग स्टार्ट करें. पार्ट्स में बनाओ आप, थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स. पहले जैसे मैंने आपको बोला 2 कार्ड से इंट्रोड्यूस करो, आप 2-3 कार्ड्स बनाओ और आप उसको पहले ट्रेन करो. ट्रेन एज इन उसको समझ में आना चाहिए कि कार्ड्स पे ऐसा ऐसा होता है कि ये चीज लगी है, ये करना पड़ता है, अगर ये नहीं करो तो फिर ये कॉन्सिक्वेंस होता है ना. तो धीरे धीरे उसको समझ में आएगा. और आपको अगर दिक्कत जाए तो फिर आप बताना, यू कैन ड्रॉप मी एन ईमेल, तो वी कैन कनेक्ट ओवर अ 1-to-1 कॉल, फिर हम प्लान करेंगे कैसे एग्जैक्टली उसको कराना है. फिर आप पहले ट्राई करो, ठीक है? इफ यू फील स्टक एनीवेयर देन वी कैन कनेक्ट. ठीक है? तो ये जैसे हाँ, देयर आर अ फ्यू पिक्स दैट आई डाउनलोडेड, मैं आपको इसे दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे वाले कार्ड्स नहीं मिले. जैसे ये एक स्केड्यूल है ना, इसमें आप उठो, दिस इज अ गुड मॉर्निंग टाइम, देन यू हैव योर ब्रेकफास्ट, देन सम क्राफ्ट एक्टिविटी. बट डिफरेंस हमने क्या किया था उस टाइम पे, ज्ञान का अल्फाबेट रिकॉग्निशन नहीं था, सो वी पुट कैपिटल लेटर्स एंड बोल्ड लेटर्स. ठीक है, कैपिटल एंड बोल्ड लेटर्स में लिखा था, तो साथ साथ बच्चे की साइट रीडिंग भी डेवलप होती है.
तो ये जैसे बहुत ब्रॉड स्केड्यूल है ना, गुड मॉर्निंग, फिर ब्रेकफास्ट किया, आर्ट एंड क्राफ्ट किया, नैपी चेंज किया, लंच टाइम भी हो गया और यही स्लीप टाइम भी हो गया। नहीं अच्छा, ये पोस्ट लंच स्लीप टाइम होगा, फिर स्टोरी टाइम एंड देन होम टाइम। तो ये प्रोबेबली किसी सेशन का इमेज है, बट दिस इज हाउ यू हैव टू मेक योर स्केड्यूल। कुछ इमेजेस और हैं, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, बट गूगल पे आपको सब मिल जाएगा। एक सेकेंड, आई थिंक समबडी हैज जॉइंड इन। ये एक बार आई एम जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू द इमेजेस सो दैट यू गेट एन आइडिया एंड यू कैन take a look at or browse from Google. So these are the different kinds of pictures you can actually prepare in the schedule. Okay. ये do this and then this आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये हमारा schedule है और हर एक एक्टिविटी के बाद आपको आपकी preferred एक्टिविटी ये वाली मिलेगी। ये हमारा प्लान है, कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। और क्या चाहिए, यू कैन मेक द चाइल्ड एक्चुअली चूज एंड पुट इट हियर कि अच्छा ठीक है, आपने मम्मा की बात मानी, अगर आप राइटिंग करोगे तो आपको बबल्स से खेलने मिलेगा, फिर अगर आप थोड़ा सा पेंटिंग करोगे तो आपको जंपिंग मिलेगा। तो दिस ऑल्सो हेल्प्स देम अ लॉट, सो यू कैन एक्चुअली गो फॉर दिस वन विनीता, आई थिंक दिस विल हेल्प यू। देन ऐसा ये भी एक पैटर्न होता है, आपने मॉर्निंग का बना दिया ब्रॉड, फिर आफ्टरनून, फिर इवनिंग, तो साथ साथ उसको टाइम ऑफ द डे भी समझ में आने लगा बच्चे को कि मॉर्निंग में हमने ये किया, ये फिनिश हो गया तो हमने पूरे में क्रॉस लगा दिया मॉर्निंग पे, फिर आफ्टरनून पे क्रॉस लगा दिया, फिर इवनिंग पे क्रॉस कर दिया। फिर ये तो हमारा है लेटेस्ट वाला लेट मी टॉक ऐप। तो आई वुड सजेस्ट यू ऑल चेक आउट द वीडियो दैट आई हैव पुट, है ना, उसके बाद कुछ कंफ्यूजन या डाउट होगा तो फिर ये लेट मी टॉक में ऐसे कई फोल्डर्स हैं, आप देखो इसमें कलर्स 1 2 3 ABC शेप्स एंड वी कैन मेक आवर ओन फोल्डर्स एज मेनी एज वी वांट। फिर हाँ, एक ये भी इम्पॉर्टेंट चीज है दिखाने की, तो आप जैसे स्केड्यूल बना रहे हो ना, तो जो चीज होती जा रही है यू हैव टू लेबल इट समहाउ कि ये हो गई, ये फिनिश हो गई। तो इधर यू टेक द कार्ड आउट एंड पुट इट इन अ बॉक्स कि ये फिनिश, या फिर आप इसी पे क्रॉस करो या आप टिक करो। तो जैसे इन्होंने वेलक्रो से बनाया, ये बड़ा मेहनत वाला काम है, बट however it works for you. So this is one thing, cross finish जैसा भी है, but something to indicate that this activity is done and we move to the next one. And then you can put the time also. टाइम पर तभी डालना जब बच्चा एटलीस्ट नंबर्स रीड करता हो। जैसे अब आपका बेटा तो करता है, ही इज ओल्ड 6 years, बट जो छोटे बच्चे हैं, देयर आर पेरेंट्स विथ किड्स 2.5 आल्सो, तो अगर नंबर्स रीड कर लेते हैं तो आप टाइम डालो, नहीं तो वो अननेसेसरीली ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाता है उनके लिए। फिर टाइम धीरे धीरे जब समझ में आने लगे तो डिजिटल के साथ हम एनालॉग क्लॉक भी डालने लग सकते हैं। दिस विल हेल्प देम अंडरस्टैंड द 2 different ways to read the time also, ठीक है। फिर ये सेंटेंस फॉर्मेशन में जिनके बच्चे भी वर्ड्स पे अटक गए हैं, दे आर नॉट फ्रेमिंग फुल सेंटेंसेस, तो वी कैन एक्चुअली प्रॉम्प्ट देम फ्रॉम हियर एंड पुट द साउंड ऑन in the Let Me Talk app कि I, ये this is for I, the boy is pointing at himself, want खाना, and खाना क्या, bread, butter and cheese। तो ये पूरा जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया। तो फ्रॉम हियर यू कैन एक्चुअली प्रॉम्प्ट द चाइल्ड कि एक वर्ड से आंसर नहीं होगा कि तुम सिर्फ आके हमें बस ये बोलो ब्रेड बटर, हाँ, यू हैव टू मेक द फुल सेंटेंस। सो दिस हेल्प्स। फिर दिस इज आल्सो अनदर फॉर्म, आई वांट पिज्जा एंड कोक। तो these are just some samples and examples, but we can do however we want, and the app में it gets very easy. Then this is the pattern how I was telling you all the therapist used to do. बहुत सारे cards हैं, इसको आप assume करो कि ये पूरे room की wall है, and here it is just 10 cards, but there are like hundreds cards there, 100 of cards in the whole room. And then she puts it like 1 2 3 4, यहाँ पे today's schedule लिखा है, वो लिखती थी work time, and then you place the cards. तो suppose she puts the card
उसने लिखा कार्ड यहाँ पे, आप यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है रेलेवेंट सा, बट सपोज शी सेड द कार्ड हियर बिग पिक्चर एंड देन वियान ब्रिंग्स बबल्स, तो ठीक है, आंटी को बिग पिक्चर पे रिस्पॉन्ड करूंगा तो बबल्स मिलेगा, क्योंकि 1 के बाद ही 2 आता है, ऐसे तो बबल्स मिलने से रहा, है ना? So that ways, and then if you are adding time to it, so you can just write time here, otherwise this is just to put a cross, or you can put the cross on the card itself. So you will get a lot of ideas. थोड़ा आप Google करो, you will get, and जो आपको suitable लगे, you try that. Then ये भी एक है तरीका कि हमने सिर्फ इमेज और वो चीज एक के नीचे एक लगा दी. If you want, you can put arrows, downward pointing arrows in between, तो वो भी बच्चा सीखता है वहां से. और एक ब्रॉड वीकली स्केड्यूल आप अपने लिए बनाओ, बच्चे के लिए नहीं. ये आपको पता होना चाहिए कि हमें इस वीक में ये कवर करना है, एंड देन यू कैन ब्रेक इट डाउन टू अ डे. ये क्वेश्चन मुझसे एक पेरेंट ने पूछा था, सो दैट इज व्हाई आई एम डिटेलिंग ऑन दैट, कि आप वो चीज क्लियर करो बच्चे को. नहीं सॉरी, आप अपने को क्लियर करो कि हमें ये चीजें करनी है पूरे वीक में, और बच्चे को बहुत पार्ट्स में, पीसेस में, उसको नहीं लगना चाहिए लोडेड. जैसे आपने कहा ना, आप ही पूछ रहे थे ना शायद, कि वो देख के ही एंजाइटी बढ़ जाती कि हमें ये करना है. तो टू वर्क ऑन दैट वी हैव टू एक्चुअली कीप द शेड्यूल फॉर अस, और बच्चे को बहुत छोटा पीस उसका एक विजिबल फॉर्म में दिखाना है कि हमें अभी ये करना है और उसके बाद हमें ये मिलेगा. Okay, guys, any more questions? Thank you so much, ma'am. Okay, dear. हेलो मैम. Yes, dear. मैम मेरी बेटी है 4.8 इयर्स की. मैंने वो जब भी मैंने बस विजुअल उसका शेड्यूल लगाया था तुम्हें उसके रूटीन का. दिन भर ब्रश करना है, ब्रश, चलो टॉयलेट, जो भी नहाना, जो भी वो है. लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये आ रही, 2 साल से वो पॉटी बताती है मुझे, खींच के ले जाएगी, डोर खुलवाएगी. लेकिन सुसु मैं डेली इसको सुबह ले जाती हूँ कि चलो वॉशरूम जाएंगे, सुसु करेंगे, टॉयलेट का कार्ड दिखाती हूँ. लेकिन अगर मैं नहीं ले गई इन केस, जैसे आज मेरी काम वाली बाई नहीं आई थी तो मैं घर में बिजी थी, तो ये थोड़ी देर रोकी रहती है, 1-2 घंटे तक रुकी रहेगी, फिर वो कर देगी. लेकिन वो खुद से नहीं जाती कि जैसे वो चली जाए या फिर मुझे कार्ड लाके दे. एक्सचेंज किसी चीज में नहीं है. जब मैं बहुत परेशान होगी तो मैं पूछूंगी क्या चाहिए, चलो वहाँ कार्ड के बोर्ड के पास ले जाऊंगी, इसमें से क्या चाहिए, तो वहाँ पॉइंट कर देगी, पानी चाहिए, टीवी देखना है, क्या चाहिए. लेकिन ये मुझे लाके देती नहीं है. तो उसके लिए ना आपको एकदम ग्राउंड लेवल पे आना पड़ेगा. यू हैव टू ट्रेन हर ऑन एक्सचेंजिंग. अब वो कैसे होगा? उसको सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है? काजू. परफेक्ट. अब आप एक कटोरी में थोड़े से काजू लेके बैठो, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज हु आर स्टार्टिंग दिस एज अ न्यू सिस्टम ऑल टुगेदर. एक्सचेंज सिखाना बहुत जरूरी है कार्ड का. तो आप एक कटोरी में थोड़े से काजू लेके बैठो, एंड मतलब वो चीज इतनी स्ट्रांगली अपीलिंग होनी चाहिए बच्चे के लिए, इतनी हाई इंटरेस्ट वाली होनी चाहिए कि आप लाए नहीं की कटोरी में एंड शी वांट्स टू ग्रैब इट. जैसे वियान के साथ था लेस चिप्स और चोको चिप्स, वो छोटे वाले चॉकलेट बिट्स आते हैं. एक चीज क्या, जैसे उसको केला, काजू, ये 2-3 चीजें बहुत पसंद है. इनकी कहीं पिक्चर देखेगी, किसी बुक में देखेगी तो मुझे लाके खोल के देगी, मतलब ये चाहिए. लेकिन तो रूटीन का जैसे टॉयलेट के लिए ये सब नहीं देती है. नहीं. खाना चाहिए. हाँ, अभी हियर इज द डिफरेंस. मतलब हमने भी ये गलतियां की हैं, इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. जो हम कार्ड बना रहे हैं कम्युनिकेशन का, हमें वही कार्ड चाहिए तो ही आपको चीज मिलेगी. और ट्रेन कैसे करना है उसके लिए, तो जैसे आपने एक कटोरी में, आप ज्यादा नहीं, 3 काजू लेके बैठो, 4 काजू लेके बैठो, और उसके भी ना बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लो. जैसे एक काजू के मिनिमम 6 टुकड़े तो होने चाहिए, ठीक है, इतने छोटे पीसेस. जैसे चॉकलेट का मैंने आपको एग्जांपल बताया, वो छोटे वाले जो चोको चिप्स आते हैं ना, वो छोटे छोटे बाइट्स, तो वो लेके हम बैठते थे. तो अब आपने 2 कार्ड्स रखे, ठीक है. एक कार्ड है आपके पास काजू का, आप प्रिंट करो या फोटो खींच के और प्रिंट आउट निकालो. एक कार्ड है काजू का, और एक और जो भी आइटम रखा है एक उसका कार्ड है. अब वो
और जो दूसरा आइटम है वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है ना, मतलब आप अंजीर रख लो, अंजीर तो वो बिल्कुल हाँ नहीं मांगेगी, ठीक है। नहीं तो अब आपने अंजीर रख ली, अब उसको दोनों चीजों के कार्ड दिख रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट यार, मेरा कैमरा ऑन नहीं है शायद, हाँ। तो आप देखो, ये एक इस हाथ में, ये आप अज्यूम करो एक बोल है, कटोरी है, इसमें काजू रखे हैं, इसमें अंजीर रखी है, और इस बोल के ठीक पास, ठीक सामने आपने उसका कार्ड रखा है। अब उसको चाहिए काजू, शी विल ट्राई टू ग्रैब इट। आप उसका हाथ पकड़ोगे, ठीक है, इसे बहुत टाइटली नहीं, बट जेंटली यू हैव टू ब्लॉक कि ये नहीं मिलेगा बेटा, ये कार्ड उठा के मम्मा को दो। तो वो आपको कार्ड उठा के देगी, और बहुत छोटा सा टुकड़ा, यू विल जस्ट ब्रेक जस्ट अ टाइनी पीस ऑफ काजू एंड पुट इट इन अ माउथ। बट उतने में तो हो ही नहीं सटाइटी, हम तो, हमारी फेवरेट चीज है, ऐसे कैसे, हमको तो हमेशा मिलता है भाई, फिस्ट फुल ऑफ काजू मिलता है, एक टुकड़ा तो हम मान ही नहीं सकते। एंड देन शी विल थ्रो ऑल सॉर्ट्स ऑफ बिहेवियर्स। फिर आप हाथ पकड़ के लाओ कि ये काट दो, जितनी बार काट दोगे उतनी बार काजू मिलेगा। तो वो धीरे धीरे ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये चीज में आपको 1 वीक लगेगा। पहले आप 2 कार्ड से स्टार्ट करो कि आउट ऑफ दीज 2 थिंग्स आपने जिसका कार्ड दिया आपको वो चीज मिली। फिर जहां आप 3 कार्ड्स रखोगे ना, तो बच्चे को समझ नहीं आएगा। अब उसका काजू रिमूव कर दो, आप दूसरी 3 चीजें रखो, या पहले दूसरी 2 चीजें रखो, एंड लेट हर अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट काजू, सॉरी, उसको ये समझने दो, इट्स नॉट ऑल अबाउट काजू, जो भी चाहिए कार्ड देके ही मिलता है। तो आपने पहले काजू हटा दिया सीन से, कोई दूसरी थोड़ी कम फेवरेट वाली चीज लाए, फिर और हमने 3 से 4 कार्ड्स किए, ऐसे उसको थोड़ा सा ट्रेन किया। बट ट्रस्ट मी, अगर ये मेहनत आप कर लोगे ना, ये 4-5 कार्ड्स बनाने में टाइम इन्वेस्ट किया, एंड मेक दिस अ थेरेपी टाइम एवरी डे। आपको मन में पता है इट्स अ थेरेपी टाइम, डोंट लेट द चाइल्ड अंडरस्टैंड दिस। उसके लिए हम एक नई स्किल सीख रहे हैं कि हमें जो चाहिए उसका कार्ड देना पड़ता है, दैट्स इट, और हमें कुछ नहीं करना। हमने कार्ड दिया और हमें चीज मिली। फिर धीरे धीरे जब आप वो कार्ड लेके आ रही है ना, तो आप उसको कटोरी पकड़ा दो, फिर देखो आप वो कितनी खुश हो जाती है। फिर उसको समझ में आएगा कि यार कार्ड मिले तो पूरा मिल गया। तो दे रियली वांट टू कम्युनिकेट दिस वे। एंड देन कार्ड के साथ साथ यू प्रॉम्प्ट द वर्ड फॉर द वर्ड आल्सो, इफ द चाइल्ड इज नॉट स्पीकिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड। जैसे कई बार क्या होता है, वोकैबुलरी तो होती है पर हमें सारे वर्ड्स नहीं पता होते, हर नई चीज का नाम नहीं पता होता ना। बट आप हर चीज को प्रॉम्प्ट करो वर्ड के साथ। तो दिस इज हाउ वी नीड टू डू। और जब बच्चा ऐसा कर लेना, तो जैसे मान लो आपने 4 कार्ड्स वॉल पे लगा दिए थोड़ा ट्रेन करने के बाद, अब उसको बहुत तेज प्यास लगी है, बॉटल उसके आसपास कहीं नहीं है, ठीक है, एंड वो आके आपको आपका दुपट्टा खींच रही है, या किसी भी तरीके से इन अ जेस्चरल वे शी इज जस्ट ट्राइंग टू इंडिकेट टू यू कि मेरे साथ चलो, वहां शेल्फ पे रखी है बॉटल, वो मुझे उठा के दो। तो आप मत रिस्पॉन्ड करो, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या बोल रहे हो। आपने वहां लगा दिए ना क्लियर कार्ड्स, और अगर आपको समझ में आ रहा है कि बच्चा पानी ही मांग रहा है, तो यू कैन एक्चुअली प्रॉम्प्ट इन एन इनडायरेक्ट वे। आप अब कार्ड्स के पास लेके जाओ और अब बोलो, क्या मुझे कार्ड्स की बात समझ में आती है, आप मुझे बताओ यहाँ से क्या चाहिए। And when she gives you the card, मतलब she literally has to pull the card from, point नहीं, pull the card out and give it to you. In exchange she gets to drink the real water. तो ये literally करना पड़ेगा उसके बाद ही वो चीज आएगी। So this is like mandatory thing अगर हमें picture exchange actually करना है तो। And for this reason only I started with this word pecs everywhere, क्योंकि picture exchange हमको हमारी therapist ने सिखाया था, and gradually she moved to a very modified version of it. So I did not really know कि pecs or just using visual cards is 2 different things. So try it this way. Okay, thank you. Yeah, okay. All right, guys. So are we good to end the session? Any more questions? I was in fact, thinking today कि instead of discussing things on the group, text में बहुत वैसा हो भी नहीं पाता, so we can actually do this every weekend. We meet online, pick up one topic, and you all put your queries. Whatever I can answer, I will definitely, give you my inputs with my experience and whatever I have learned so far. I'll be more than happy to share everything with you.
तो हम ये कर सकते हैं एक्चुअली. एंड whoever is not able to join, we can actually fix this time also. Saturday या Sunday 8 p.m. when everybody can actually manage. 9 p.m. भी कर सकते हैं. I don't mind. And those who are not able to join, they can drop in me their questions and we'll take it up when we meet live. So if you like this idea, just put a thumbs up on the group and we'll go by this. So next weekend क्या topic आप लोग चाहते हो? We need to narrow down a few topics and then week by week हम ले सकते हैं. Alright guys, so it was a very encouraging for me also. I really did not expect that so many of you will turn up for the live session. So thank you so much for that. Really motivating and really encouraging. Let us all work with our kids the best ways we can. कुछ भी आपके queries हो on any topic, just mention the topic on the group and we'll take that up first, whichever majority wants. चलो, see you all then. हाँ जी. एक चीज था, मैं सुश्री बोल रही हूँ. लास्ट टाइम मैं आपका क्लॉक्स एंड कैलेंडर का अटेंड की थी. उसके बाद से मैं आपको बोली थी कि मैंने वो गलत कर रही थी, उसको एक साथ सब सिखा रही थी. तो उसको मैंने पहले डेज फिर डेट्स वगैरह मैंने सिखाई. तो अभी वो पूरा मतलब जैसे कि कैलेंडर देख के और फिर कोई भी डेट में बोलूँ कि 25 कौन से डे पे आता है, 25 पे कौन से डे पड़ता है, तो ऊपर देख के वो सैटरडे या फ्राइडे वो बोलना, तो वो सब उसको आ गया है. जैसे कि कैलेंडर देख के ये करंट मंथ क्या है. Yes ma'am, thank you so much. Thank you so much for sharing that, Sushri. I mean, you know, actually जब कोई चीज वर्क करती है ना तो वो सुन के बहुत अच्छा लगता है. So thank you so much for sharing that. हाँ, मैं आपको बोली थी कि मैं मतलब कंसिस्टेंट नहीं रह पाती थी उसमें, लेकिन मैंने पूरा फॉलो किया. एवरीडे कुछ हो ना हो उसको कैलेंडर दिखा के सुबह वो करना ही करना है. और अगर उस दिन किसी का बर्थडे या कुछ रहा तो उसको स्पेशल नोट पे डाल देती हूँ कि इस दिन ये है. तो उसने वो सब मार्क करना शुरू भी कर दिया है. So thank you ma'am, thank you so much. You are so sweet. Thanks to you all. आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो. ट्रस्ट मी, मैंने इतनी मेहनत नहीं की थी अपने टाइम पे. मतलब व्हेन आई वाज इन दिस फेज आई वाज एक्चुअली लर्निंग. वो बहुत हिट एंड ट्रायल चल रहा था. सो नाउ व्हेन पीपल आस्क मी इज वी आर एक्चुअली ऑन द स्पेक्ट्रम एंड आई गो बैक इन दैट टाइम, तो मुझे समझ में आता है कितनी गलतियां करके धक्के खा के सीखे हैं. सो आई जस्ट want to share it with you all who all are at this stage, and you can actually, you know, reach there instead of 4 steps in 2 steps. So why not? हम क्यों नहीं अपना काम थोड़ा सा कम कर दें just by, you know, structuring a thing in a better way. मैम, आपने विहान का विजुअल कार्ड कब से यूज किया था, शुरू किया था, किस एज से शुरू किया था? हाँ, तो अराउंड जब 2 इयर्स का था तो हमें डायग्नोसिस मिला था, और 2.3 इयर्स का था जब ये, तो हम उस थेरेपिस्ट के पास पहली बार गए थे और हमें आइडिया नहीं जमा तो हमने गिव अप कर दिया. तो वर्बल ये हो गया था, बट आफ्टर अराउंड 5-6 मंथ्स आप समझ लो 2.7 2.8 ऐसी कुछ उसकी एज रही होगी जब हमने दोबारा ये विजुअल कार्ड्स स्टार्ट किए. और अच्छा, जब आपने दोबारा शुरू किया तो आपको लगा विहान उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है? क्योंकि मैंने अपनी बेटी का शुरू किया था. जैसे मैंने अपनी बेटी का विजुअल शुरू किया था वो समझने लगी. फिर मुझे किसी स्पीच थेरेपिस्ट ने कहा कि वो उस पर डिपेंड हो जाएगी, उस पर मत करो. लेकिन अब मैं फिर से आपका देख रही हूँ तो मैं फिर से शुरू कर रही हूँ, शुरू कर चुकी हूँ. लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं ले रही. जैसे पहले वो आती थी देख के तुरंत वही चीज कर देना. तो आपके साथ ऐसा हुआ था कि विहान ने जब दोबारा आपने शुरू किया तो उसने इंटरेस्ट नहीं लिया? एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था. कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था वो, तो इसीलिए हमने ब्रेक डाउन किया उसको एंड वी केम डाउन टू द ग्राउंड लेवल. हमने बिल्कुल उसके फेवरेट आइटम से शुरू किया, जो मैंने अभी आपको बताया ना पूरा एग्जांपल, चोको चिप्स और लेस चिप्स. तो जब हमने वहां से स्टार्ट किया तो इट टुक टाइम. धीरे धीरे उसको चीज समझ में आई. फिर हमने 2 से 4 कार्ड्स किए, 4 से 10. फिर हमने एक सिर्फ स्केड्यूल बनाया, फिर लेट मी टॉक ऐड किया, और साथ ही साथ हम थेरेपिस्ट के पास भी जाते थे. एंड शी यूज्ड टू चार्ज अस 1100 फॉर 1 सेशन. कैन यू इमेजिन? जाना आना 4 घंटे, पेइंग फॉर दैट 1 hour सेशन. बट इट वाज टोटली वर्थ इट, क्योंकि वो चीजें हमें नहीं समझ में आता ना कैसे एग्जैक्टली काम करना है. कोई चाहिए बताने वाला. जस्ट बाय
just by seeing on the internet या hearing from someone हम बहुत छोटे छोटे mistakes करते हैं. इसीलिए मैंने आज ये किया सेशन कि वीडियोस में भी देख के कई बार समझ में नहीं आता. You really need a live interaction with someone who has gone through that. अपन इतने सत्संग सुनते हैं, सेशंस अटेंड करते हैं. आज मैं बीएड कर रही हूँ तो आई एम लर्निंग इट फ्रॉम द टीचर्स हु हैव ऑलरेडी बीएड एंड एमएड, राइट? दे विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू मी बेटर, हु हैव एक्सपीरियंस्ड एंड लर्नड द होल थिंग. तो हमें चाहिए होता है एक सपोर्टिव हैंड, एक गाइड हु कैन actually train you on how to use it. इसीलिए I invested a lot of time and money to get that thing right. पहले हमारे लिए वो चीज वर्क नहीं की, बट बाद में की, because every week I used to go to her. तो जो भी mistakes हो रहे थे, जैसे भी हो रहा था, she used to explain me कि this is where the fault is. ऐसे मत करो, ऐसे करो. And she also told me तुम बात बहुत करती हो. When you come here for my session, you stay quiet in one corner and just observe what I am doing. तो उसको भी मैंने बहुत पॉजिटिवली लिया, बिकॉज आखिरी के 10 मिनट्स, लाइक इट वाज अ 50 मिनट्स सेशन विद वियान, एंड लास्ट 10 मिनट्स शी वुड ऑलवेज गिव मी in detailing what she did, why she did, and what she expects from me to do at home in this one full week. So that was good, because उसको ऐसा लगता था कि तुम बात करोगी, और actually she was right. If I used to talk, Vian would get a chance to actually not be a part of the activity and just come to me, because he wants mama to be more active and not the therapist. किसी भी बच्चे को therapist नहीं चाहिए, मम्मा चाहिए, because मम्मा is more lenient, मम्मा is more soft. आंटी की बात में क्यों मानूं? तो मौका मिल जाता है. आप एक वर्ड भी बोलते हो ना, मतलब मैं उसको सिर्फ इतना भी बोलती थी ना, डू ना, चूज द कार्ड, तो वो उतने में मेरे को डांट देती थी कि खुशबू प्लीज यू टॉक अ लॉट. मतलब आप सोचो, in that 1 full hour session, even if I say 2 words, she used to tell me you talk a lot. तो जब हम उसको ऑप्शन दे तो क्या कहेंगे उससे? जेस्चर्स करो. अगर उसको समझ में आता ना, तो इशारों की भाषा अभी से सिखाओ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ दिन पहले ग्रुप पे बात हो रही थी, तो मुझे याद नहीं आ रहा मैंने अलग से भेजा था उस पेरेंट को या ग्रुप पे भेजा था, बट जेस्चरल कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम जो भी चीज अपने बच्चों से बात कर रहे हैं ना, उसके साथ उसके इशारे, एक्शंस, do talk with those gestures. तो आगे चल के कैसे डेवलप होगी मैम? जैसे होगी नहीं, आप उस चीज को अपने मन से निकाल दीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए. जैसे उसने काजू पे उसने पॉइंट किया, काजू का कार्ड दिया, तो मैं वहां बोलूंगी नहीं काजू, मैं वहां बोलूंगी. हाँ, बिल्कुल बोलना है, और कार्ड में लिखना भी है. तो वर्बल, जेस्चरल, टेक्सचुअल, ये तीनों चीजें एक साथ करनी है आपको, लेकिन ज्यादा एम्फोसिस यहाँ पे फिजिकल उस पे है, कार्ड के एक्सचेंज पे. पर आपको हर बार वर्ड बोलना है, चाहे वो पानी, काजू, जो भी है, और एक लैंग्वेज पे स्टिक करना आप. तो जैसे अगर मान लो आपने काजू लिखा है, तो जिस भी लैंग्वेज में आप घर में बात करते हो, या अगर आपने इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज ली है, तो कोशिश करो आप सब चीज इंग्लिश में. मतलब ऐसा मत करना कि हम राइस लिख रहे हैं और मतलब इंग्लिश में राइस लिख दिया और कहीं और हमने कुछ हिंदी में लिख दिया. तो राइस और पानी नहीं होना चाहिए, या तो वो राइस और वाटर हो, या फिर वो चावल और पानी हो, ऐसा. तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, पर कंफ्यूज ना हो बस बच्चा उन चीजों से. या जो मैं बोलती हूँ मैं वही लिखूं. जैसे मैं किसी चीज को इंग्लिश में बोलती हूँ तो मैं उसको इंग्लिश में नहीं लिख सकती. जैसे मैं पानी को पानी बोल रही हूँ, एग्जाम्पल बता रहे कि जैसे मैं सब्जियों में शिमला मिर्च को मैं कैप्सिकम कहती हूँ, लेकिन आलू, पोटैटो को आलू कहती हूँ, तो शिमला मिर्च को कैप्सिकम लिख सकते हैं. प्रॉपर नाउंस में कोई दिक्कत नहीं है. ये चीजें आप लो, ये जो कॉमन यूज में अपन में मिक्स्ड लैंग्वेज यूज करते हैं, बट इन जनरल कम्युनिकेशन, जैसे मतलब मैं ये नहीं चाह रही हूँ कि जब उसका टू फ्रेज वो यूज करे, 2 वर्ड्स यूज करे. देखो अभी खुद ही हम बोल रहे हैं 2 फ्रेज. तो जब वो 2 वर्ड्स यूज करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि गिव पानी, मतलब यू गॉट माय पॉइंट. पानी चाहिए या फिर है ना. तो बस वो चीज डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. बाकी एज फार एज नाउन्स इज कंसर्न, तो आप अब जैसे हम में से शायद कोई भी बिस्तर नहीं बोलता होगा, अपन बेड ही बोलते हैं, इवन इफ वी आर टॉकिंग इन हिंदी टू आवर किड्स. हम बात पे दरवाजा तो खैर चलो फिर भी बोल देते हैं हम, पर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं वे कॉमनली वी यूज इंग्लिश मोर, है ना. तो हम अपनी लैंग्वेज लिखेंगे, जो माँ बोलती है. एग्जैक्टली, जो हम बोल रहे हैं. स्पेशली नाउन्स के साथ उतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू सेंटेंस फ्रेमिंग, तो वो चीज गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, है ना. तो वहाँ
हाँ, आप ध्यान मैम दो। एक क्वेश्चन थी कि जब जैसे मैं मॉर्निंग का कार्ड दिखा रही हूँ, अगर इन हाँ। केस कोई कार्ड रूटीन का खो जाता है तो क्या मुझे सेम वही कार्ड रखना है कि मैं कार्ड चेंज कर दूं तो कोई मैं लिखूंगी सेम ही गुड मॉर्निंग, लेकिन अगर वो चेंज हो जाता है, खो जाता है इन केस, तो मैं दूसरा कार्ड नहीं बना के डाल सकती हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल आप डालो। अगर थोड़ा उसमें बच्चे का बिहेवियर आ भी रहा है तो आप उसको एक्सप्लेन करो कि दैट कार्ड इज लॉस्ट, वी हैव मेड अ न्यू कार्ड, दिस इज आल्सो मॉर्निंग। फिर आप उसको गूगल पे दिखाओ, इमेजेस दिखाओ स्क्रीन पे, डाउनलोड करके आप एक फोल्डर बनाओ मॉर्निंग, और उसमें 5-6 इमेजेस दिखाओ कि देखो ये भी मॉर्निंग है, ये भी मॉर्निंग है, ये भी मॉर्निंग है, ये सब मॉर्निंग है। पर मॉर्निंग में एक चीज कॉमन है, स्काई एकदम ब्राइट वाइट होता है, इट्स लाइटेड एंड देयर इज सन। तो वो चीज क्लियर करनी चाहिए, मतलब हमें बच्चे को पजल नहीं करना है, उसकी कंफ्यूजन को बढ़ाना नहीं है, उसकी कंफ्यूजन को सॉर्ट करना है ना? तो यार एक जैसे चीज और, हाँ, सुबह वो उठती तो मैं उसे बोलती नहीं थी मॉर्निंग हो गई, देखो सन निकल आया, तो इतना मेरा बोलना मतलब नहीं बोलना चाहिए मुझे इतना ज्यादा। हाँ अभी उसकी लैंग्वेज जिस लेवल पे है ना, उस हिसाब से आप हाँ बोलो, मतलब बहुत बॉम्बार्ड नहीं करना है। दो वी हैव टू फीड अ लॉट ऑफ लैंग्वेज, ऐसा भी नहीं है कि हमें बात नहीं करनी है, बट जिस टाइम पे आप चाह रहे हो कि आपको रिस्पॉन्स चाहिए, वो टाइम आप हाँ थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ। अदरवाइज आपको जितनी इंफॉर्मेशन देनी है बहुत सॉफ्ट और स्लो पेस पे आप चलो, और उसको इंफॉर्मेशन देते रहो ग्रेजुअली। पर हर वक्त हर चीज हम डिटेल नहीं करते रहेंगे, दैट गेट्स ओवरलोडेड ऑन द चाइल्ड ओके ना। एक चीज बिफोर वी एंड द सेशन, ये जी कुछ कार्ड्स हैं, एक सेकेंड मुझे ना, ये अच्छा, ये मैं ना आपको ग्रुप पे शेयर करती हूँ पिक्चर्स खींच के, few different types of schedules that we prepared। या फिर एक सेकेंड रुकिए, मैं बैकग्राउंड हटाती हूँ तो you'll be able to see। ये मेरे हाथ में एक पेपर है, is this visible? यस मैम। विजिबल ना? हाँ। तो ये ना वी आर नॉट यूजिंग दिस करेंटली, बट आज मैं इसका ड्रॉअर क्लीन कर रही थी तो मुझे कुछ पुराने वो मिले, हम जो तरह तरह के स्केड्यूल्स बनाते थे। तो देयर वाज अ टाइम जब बोर्ड पे हम बहुत सारी चॉइसेस और अलग एक्टिविटीज जैसे लेटर राइटिंग सीख रहे हैं या वो, तो बोर्ड ऑक्यूपाई हो गया था और कार्ड्स भी हमने सब इधर उधर कर दिए थे। तो आई केम टू दिस लैमिनेटेड शीट्स। तो दिस इज वन टाइप, देन देर आर 2 अदर टाइप्स। मैं आपको बताती हूँ, जैसे इसमें हमने क्या किया था, एक तरफ ब्रॉड स्केड्यूल लिख दिया कि दिन भर में हमें ये चीजें करनी है ना। तो जैसे माई स्केड्यूल, डेट एंड डे। तो ये ट्यूसडे है विच आई विल मेक द चाइल्ड राइट। तो वियान यूज टू राइट कि आज ट्यूसडे है, कैलेंडर से देख के आओ, यहाँ लिखो डेट क्या है वो लिखो, डेट का पूरा फॉर्मेट नहीं, सिर्फ नंबर। और ये हमारी एक्टिविटीज हैं। तो यू वेक अप, हो गया, फिर यू गो टू द वॉशरूम, हो गया, ड्रेसअप किया, हो गया, एंड देन ऐसे करके आपको जो जो उसमें लिखना है आप वो चीजें लिखो ना। तो लंच, स्लीप, स्नैक्स टाइम, स्टडी टाइम, आउटडोर प्ले। अब इसको डिटेल आप लेट मी टॉक पे ले लो, और इसके बैक साइड में हमने टाइमिंग्स डाल दिए बाद में, जब इसको टाइम भी रीड करने आने लगा तो क्या चीज आपने कितने बजे की, या 7 से 8 बजे, 7 से 8 के बीच में आपने क्या किया वो यहाँ पे लिखो, फिर 8 बजे आपने क्या किया वो यहाँ लिखो। तो ये हमारा एक पैटर्न था स्केड्यूल बनाने का। फिर एक बार हमने ये वाला किया, हाँ। अब इसमें हमने ये वो स्टेज थी जब हमें टाइम और उन सब की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट देयर वर सर्टेन थिंग्स जो हमें रोज करनी ही करनी है ना। जैसे अब आप देखो इसमें, मुझे नहीं पता फॉन्ट कितना क्लियर है, मैं एक बार रीड कर देती हूँ। तो जैसे ओटी एक्सरसाइज करनी ही करनी है, सेंसरी कुछ तो करना है रोज, राइटिंग एक बार करनी है, रीडिंग करना है, ड्राइंग, कलरिंग, स्टोरी, कोई एक नया कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, स्टडी टाइम, आर्ट एंड क्राफ्ट, साउंड हीलिंग, प्ले टाइम, फ्री प्ले, फिर फूड, फिजिकल एक्टिविटी, योगा, प्रिटेंड प्ले, रूल्स एंड डिसिप्लिन। तो इस तरह से एक लिस्ट बना दी कि ये चीज रोज होनी है। अब अंडर दिस हमने क्या किया, तो जैसे ओटी एक्सरसाइज, आज ओटी एक्सरसाइज में क्या करना है, एनिमल वॉक्स, तो वो हमने मार्कर से लिख दी। कल जब डेट चेंज होगी तो ऊपर हमने डेट, मंथ, डे, ईयर ऊपर सब लिखा।
नेक्स्ट डे का, और आज हम ओटी एक्सरसाइज में एनिमल वॉक ना करके कुछ और करेंगे, तो वो हमने मार्कर से लिखा हुआ इरेज कर दिया और आज हमने वो लिख लिया। तो रोज रोज ना आपको बहुत सारा वो बोर्ड पे राइटिंग स्क्रिबलिंग नहीं करना पड़ता, ये शीट्स भी यूज हो आराम से आप कर सकते हो। एंड और मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो इसमें एंड में कि आपने जब ये सब कर लिया, व्हेन यू डू ऑल दिस, तो यू गेट स्टार्स, या फिर आप आउट ऑफ दीज थिंग्स कोई 3 चीजों पे स्टार्स दे सकते हो कि ये सब तो ठीक है, बट अगर आपने ये 3 चीजें की तो आपको स्टार्स मिलेंगे। एंड इफ यू अर्न स्टार्स, तो इतने स्टार्स अर्न करने पे यू गेट समथिंग। तो जैसे अब इस चार्ट के हिसाब से मैं आपको एग्जांपल दूं, तो वियान का फिलहाल टॉप मोस्ट अट्रैक्शन है PS4, तो मैं उसको PS4 के लिए रात तक वेट कराऊंगी। जब हो जाएंगी हर चीज पे यू विल गेट 2 स्टार्स, एंड व्हेन यू गेट 20 स्टार्स, जैसे ये करो तो 2 स्टार मिलेंगे, स्टडी किया तो 2 स्टार्स मिलेंगे, ओटी एक्सरसाइज किया तो 2 स्टार्स मिलेंगे, किसी चीज पे 0 स्टार भी कर दो, किसी पे 1 स्टार कर दो, एंड टुवर्ड्स द एंड इफ यू हैव अर्नड 20 स्टार्स, तो यू गेट PS4 फॉर इतने मिनट्स। तो वो ना एक आता है इंटरेस्ट, और आपकी भी सारी चीजें कवर हो जाती हैं, आपको भी लोडेड नहीं लगता कि चलो हमने अपना शेड्यूल एक बना लिया है कि हमें रोज एक बार ओटी, एक बार सेंसरी, एक बार ये चीजें करनी है। तो ये हो गया। और एक हमने बनाया था, जब व्हेन आई वाज टीचिंग हिम द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, तो आई एक्चुअली रिमूव्ड दिस स्टार्स वाला थिंग एंड गॉट मनी इन द पिक्चर। तो उसके लिए भी हमने क्या किया, एक ब्रॉड शेड्यूल बनाया कि ये हमारी एक्टिविटीज हैं और हर एक्टिविटी के लिए हमको मनी मिलेगा। तो किसी चीज के लिए आपको 2 रुपीज मिले, किसी के लिए 5 रुपीज, किसी के लिए 50 भी मिले, किसी के लिए 100 भी मिले। सो यू राइट डाउन योर एक्टिविटीज एंड देन एट द बैक साइड, तो ये हमारा पूरा 1 मंथ चली शीट। पीछे आप हर डेट पे लिखो, इस डेट पे हमने इतने पैसे अर्न किए, इस डेट पे इतने पैसे अर्न किए। तो मैंने वियान को, ही वाज लाइक गेटिंग वेरी एंशियस, ये आइडिया मुझे तब आया था जब ही वाज गेटिंग वेरी एंशियस, उसको दादू के पास जाना था एंड इट वाज नॉट फीजिबल देन, बट आई न्यू 1-1.5 महीने बाद हम जा सकते हैं भोपाल। तो आई टोल्ड हिम कि दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो एंड यू हैव टू अर्न मनी फॉर योर टिकट। अब तुम देख लो, तुम्हें फ्लाइट से जाना है तो यू हैव टू अर्न 4,000 रुपीज, तुम्हें ट्रेन से जाना है तो यू हैव टू अर्न 1,500 रुपीज। नाउ यू डिसाइड वॉट एवर यू विल अर्न, यू विल गेट अकॉर्डिंग टू दैट। और हम जाएंगे, और अगर उतना भी नहीं अर्न किया तो ट्रिप कैंसिल। And the way he cooperated and did and followed his schedule every day. So this is how actually, matlab you start from that very basic level of introducing pictures and we can advance it to this. तो schedule हमें इस अभी तक भी काम आता है। आप सोचो, कई बार ऐसा लगता है ना कि अब क्या जरूरत है हमें schedule की, but see this is how schedule helps in so many things. तो that is all. ये 2-4 थे important which I felt like sharing. This can actually help you create yours. I'll see if I have a soft copy of these, कहीं हो सकता है हो saved drive वगैरह पे. If I find that, I'll share it on the group. So you can just make some changes and जो अभी सॉरी आपने अभी जो शेड्यूल्स दिखाए, प्लीज उसके फोटोज थोड़ा वो ग्रुप पे शेयर करें। मैं वही कह रही थी कि मैं एक बार चेक करूंगी, अगर इसकी सॉफ्ट कॉपी मिल गई मुझे जो मैंने लैपटॉप पे बनाई थी, तो वो एज इट इज आई विल शेयर, एंड अगर सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली तो फोटो तो डेफिनेटली आई विल शेयर इट, है ना। तो दिस विल गिव यू मोर आइडियाज एंड यू कैन एक्चुअली ब्रिंग इन योर क्रिएटिविटी। एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं, व्हेन you really want to do something ना, कि हमें अब स्केड्यूल करना है and you don't have any doubts, मैंने कहा ना किसी भी चीज को ट्रस्ट करते हो अगर आप, तो ऑटोमेटिकली इट स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू एंड यू स्टार्ट गेटिंग आइडियाज कि ऐसे कैसे नहीं काम कर रहा है, ऐसे नहीं किया तो हम ऐसे करके देख लेते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे करके, पर रिजल्ट तो इसी से आना है। सो इट स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू। जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट वेज, मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन योर चाइल्ड्स नीड्स लेवल, योर गोल्स, अकॉर्डिंगली आप उस पे करो ना। नेक्स्ट सेशन के लिए अब आप लोग मुझे बताना ग्रुप पे व्हाट टॉपिक यू ऑल वांट एंड लेट्स सी इफ वी कैन मीट नेक्स्ट संडे ऑन दैट फॉर दैट। ओके, थैंक यू खुशबू। ओके डियर, चलो I think we have exceeded the time limit. We decided to meet for 1 hour, but it's almost 2 hours. Wow. Yeah. Chalo. Okay, guys. Good night, everyone. And let's meet next weekend then. Thank you, ma'am. Good night.
Yeah, yeah. Okay, good night. Bye bye.